You all in the another top 10 series, rather the first one of 2021, with another hot topic about GST, the recent amendment in that. The program Top 10 is designed by the Nagpur branch of ICAI. The concept is that every month there are so many changes are there, so many amendments are there. It becomes literally very difficult for every professional to keep themselves updated about the changing tax laws, or the laws are not only changed by the GST Council or by the Finance Act or by the Parliament, but it is also changed by the judiciary, by the GST Council by way of notification, ruling, and judgments and whatnot. So, an attempt is there to cover all the 10 top updates in the field of income tax, in the field of GST, in the field of corporate law, in this the top 10 series designed by Nagpur branch. Today's we are covering the top 10 updates of GST, and we have with us CA Bhavesh Mittal with us. Before I begin or introduce the speaker, I would request Chairman of the Nagpur branch, CA Saket, for his welcome address. Thank you so much, Naresh Bhaiya. A very good evening, respected dignitaries. At the outset, let me wish all of you a very happy and a prosperous new year 2022, because this is the first time that we are having an interaction with the members of Nagpur branch as well as the members from out of Nagpur branch for a very informative session, the top 10 series. And this is going to be the 6th lecture on GST, which is happening since 2021. At the same time, let me wish all of you a very happy Makar Sankranti as well, because I feel after the due dates of income tax have been extended, we really felt a little bit relaxed, and all of us have tried to do those things which we like the most. GST, definitely from 1st January 2022, many changes have come in, and that's the reason to start the year 2022. We thought that this is the only apt topic we should start with, because these are the things which are going to put a lot of impact on the practice scenario, and therefore we need to be really updated on all the provisions related to this. Knowledge Ki Pathshala, yes, this is what it is called like. The coordinator for this top 10 series, Naresh Jakhotia ji, who is the man behind this concept of top 10 series. Thank you so much, Naresh bhai, for sparing a valuable time for this. And we have got a young, dynamic, very dashing speaker from Raipur, CA Bhavesh Mittal ji. Bhavesh is going to speak out on all the latest amendments which have come into effect from 1st January 22, as well as the latest judicial pronouncements. Because friends, these are the things which we all professionals need to look into. There are so many things which we still are not really comfortable into. I was just sharing an example with Bhavesh bhai ki somebody just gave him that the entire credit from April 21 till December 21 needs to be taken in this month. If you are not taking it, it will lapse. So there are so many things which keep on coming into our minds, but the law is clear. It is now more of technology driven. So therefore we have to be very clear into what are the provisions which we need to follow, because this is going to be auto-populated structure like, and therefore the clients should not suffer because of any of these things. So I welcome Bhavesh bhai to his first maiden lecture at Nagpur branch of WRCI, and I welcome all the respected members to this first lecture of 2022. The top 10 series Knowledge Ki Pathshala continues. As regards the forthcoming programs are concerned, we are planning for another top 10 series on income tax, as well as a CP program as regards the search survey cases, because these are on the rise. So therefore a full-fledged session which will be dedicated as to what are the intricacies involved and what are the actions that a chartered accountant is expected to take as far as his clientele is concerned in income tax, as well as in GST, because there are so many raids which are happening in GST as well. So keep the members updated about that. Another session is being planned latest on that. I would like to appeal to all the members that 20th of January, 21st of January, and 22nd of January. These are the 3 very important days, because an international tax convention is going to be organized virtually. This was originally a physical program that was planned at Mumbai, but due to COVID, it has now been converted into virtual. It carries 9 CP hours and the registration fees of 750. Friends, an international conference, not a chance to miss.
because to get the worldwide knowledge and to get an exposure about the various things which are happening in and around the country, we need to be really updated and abreast about that. And that's the reason this conference becomes so very important. I appeal to all the members, kindly do register for this. We have shared the link in the WhatsApp group as well, and have done the email as well. In case anybody needs any specific information about the convention, they can reach out to me or any of the managing committee members for this, and definitely we would be loving to help you on that. 26th of January, Republic Day celebrations, definitely we'll be looking forward to on that. Friends, the elections for Nagpur branch, which were scheduled on 17th of January 2022, has been cancelled due to this corona epidemic. So definitely, whatever the instructions we get from head office about the further proceedings, we will keep the members updated on that. So I welcome all of you to this again very interesting meeting on this, and over to you, Naresh Babu. Thank you so much. Welcome, Bhavesh. Thank you, Chairman sir. I think ICAI and Karuna also want you to continue as a chairman of the branch for a little more time actually, and this is the expectation from all of us. भावेश जी, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ टेप्टॉन सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, कि जैसे मेंबर्स ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं उस तरीके से एक इनफॉर्मल वे में डिस्कशन हो पाए। एक कॉन्सेप्ट था कि बिना सीपी अवर्स के आज की तारीख में कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। सो इंटेंशनली द टॉप सीरीज जब डिजाइन किया गया था तब कॉन्सेप्ट विदाउट सीपी अवर्स का रखा गया था कि सीपी अवर्स से आते हैं तो कोई और पर्पस हो सकता है। Without CP hours, अगर still the members are able to attain, and such a prominent number और अच्छे लोग attain कर रहे हैं नागपुर ब्रांच से। आनंद मदान जी is there, प्रीतम बत्रा जी is there, संदीप जैन is an active member, अजय वासवानी is contesting for the branch, very active, he is also there. अभय राजेंद्र जी is a senior member, he is also participating. जयंत पटराले जी, कमल अग्रवाल जी is there, अश्विन भाई अग्रवाल जी is there. And then Chanchal Jain, Shubham Ladda, Vikas Baheti, Santosh Dekhate, Mithun Prathape, lot many active members of the Nagpur branch are participating for this session. So, aim है basically एक informal discussion हो पाए, and to take the advantage of the expert speaker like Bhavesh ji, let me introduce the audience to Bhavesh ji. Bhavesh Mittal ji is a partner of Hirekani and Associates LLP. He is representing the Central India for Hirekani and Associates. He has taken more than 75 plus seminar and also the empaneled faculty of GST for ICAI. He was the vice chairman of SICASA and has won the best SICASA award during his tenure in SICASA. He's a regular writer and columnist writing for various newspapers and magazines. He has also written a renowned book, GST Myth Simple, and he is there with us for another topic that is making GST simple, the top 10 updates. I hand over the floor to C. I welcome Bhavesh Mittal ji and I hand over the floor to C. Bhavesh ji. Please, sir. So, a lot many thanks to Nagpur branch, Saket sir and Naresh sir and other dignitaries of Nagpur branch. So, there are lot many amendments. जैसे starting में मैं सर से बात कर रहा था तो सर ने बोला कि मैंने पूछा कि कैसा है कोविड, तो सर ने बोला जीएसटी जैसा। तो मैं इमीडिएट समझ गया कि जीएसटी में जितने म्यूटेशंस हैं, सर का रेफरेंस कहीं ना कहीं कोविड के म्यूटेशंस के साथ साथ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट, I will like to start with the amendments, and here are the key major amendments जो 1 जनवरी 2022 से applicable हैं, and sector specific के साथ साथ there are many general amendments which are applicable for all the taxpayers. So we will take up first the general amendments. जो first I would say the hero amendment is GSTR 2B. उसके बाद बहुत सारे रिकवरी प्रोविजन पे उन्होंने अपने स्कोप को वाइडन किया है, प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड चीजों में उन्होंने चेंजेस किया है, ई वे बिल के रेस्ट्रिक्शंस में इन्होंने कुछ मेजर जुरिस्प्रूडेंसेस को ओवररूल किया है, और कुछ रिफंड रिलेटेड प्रोविजन में कुछ कंप्लायंसेस उन्होंने फर्दर बढ़ाए हैं। उसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि जो क्लब्स एसोसिएशन होते हैं, रियल स्टेट वाले सेक्टर है, उनसे रिलेटेड म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्टोरेंट सर्विस में अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी के रेट्स को उन्होंने बढ़ा दिया है, तो जिनके कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी मेजर अमेंडमेंट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं 1 जनवरी से। और उसके बाद क्योंकि साकेत सर ने जो ब्रोचर है उसमें अमेंडमेंट के साथ साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी जोड़ दिया,
तो जो जो इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल के विच अ मेंबर मस्ट नो, वो सब भी आज इस डिस्कशन में अपन टेकअप करेंगे. सो विद द परमिशन ऑफ डिग्नेटरीज ऑफ नागपुर ब्रांच, कैन वी स्टार्ट सर? Yes, please. Yeah. So the first amendment on the screen is GSTR 2B. I would request all the member to pay their 100% concentration of this amendment. So it starts with subject to the provision of 41 or 43 capital A. This is section 16 to capital C, which was always there since the inception of GST law. I'm just briefing you about the provision as it was existent before 1st January. So subject to the provision of section 41 or section 43 capital A, this is a provision which is not made yet effective yet. The tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or utilization of ITC in respect of state supply. Simple अगर terms में बोलूं मैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर कोई इनवॉइस जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, सप्लायर ने उसका टैक्स पे कर दिया होना चाहिए आइदर कैश से या आईटीसी की यूटिलाइजेशन से. जिस दिन जीएसटी आया उस दिन से ये प्रोविजन एज इट इज अवेलेबल था. जस्ट यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ था और सेक्शन 43 कैपिटल है जो कि अभी तक इफेक्टिव नहीं है, उसके बारे में अपन बात करेंगे. सो अगर ये 36(4) और ये जो 2B वाली आने की कहानी है तो एक बार इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखते हैं. जुलाई 2017 से 8 अक्टूबर 2019 तक कोई भी ऐसी बात नहीं थी. ये प्योर रेस्ट्रिक्शन जो ऊपर मैंने लिखा है 3 लाइन का, वो केवल एक रेस्ट्रिक्शन था कि सप्लायर का टैक्स पे हो जाना चाहिए और उसके अलावा क्रेडिट लेने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि 2A से कंपेयर करो या 2B से कंपेयर करो. एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर था जो केवल ये बोलता था कि 17-18 का क्रेडिट अगर आपको आके मार्च 2019 में लेना है तो वो 2A में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. उस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के अलावा एक्ट में, लॉ में कोई कंडीशन नहीं थी. 9 अक्टूबर 2019 को टिल दिसंबर 2020 उन्होंने रूल 36(4) ले आया. उस रूल को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई. 20%, 10%, 5% केसेस ऐसे आए जहां पे उसको अल्ट्रा वायरस बोला गया. आई वुड रिक्वेस्ट मेंबर्स टू म्यूट. जहां पे उसको अल्ट्रा वायरस बोला गया और साथ ही साथ अल्ट्रा वायरस जैसे ही उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने 43 कैपिटल ए सेक्शन इंसर्ट किया उसको वायरस देने के लिए, लेकिन उसको कभी नोटिफाई नहीं किया. उनकी प्लानिंग कुछ और थी. 1 जनवरी 2021 से टिल जब तक फाइनेंस एक्ट नोटिफाई हुआ, फाइनेंस एक्ट का वो पर्टिकुलर प्रोविजन नोटिफाई हुआ, तब तक उन्होंने क्या किया, केवल 2B को इंट्रोड्यूस करा. उसको 36(4) से कोई लिंक नहीं करा. लॉ में कोई एज सच उसका बैकअप प्रोविजन भी नहीं डाला. तो 2A, 2B और 36(4) तीनों अलग अलग चलते थे. हर एक रजिस्टर्ड पर्सन मंथली 3B फाइल करते समय क्यूमुलेटिव वे में, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव वे में जीएसटीआर 2A में कितना बैलेंस आ रहा है वो देखता था और 5% ज्यादा कम एज पर द सिचुएशन केस टू केस बेसिस क्लेम करता था. और 3B फाइल करने के बाद क्यूमुलेटिव बेसिस पे 2A रिकंसिलिएशन या 2B रिकंसिलिएशन एज द केस में भी परफॉर्म होता था. लेकिन अब जो उन्होंने लॉ में चेंज लाया है वो कुछ ऐसा ले आया जिसमें 2B में अगर कोई इनवॉइस नहीं आई तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. यस, आई एम सेइंग करेक्ट. 16(2) के इंसर्ट होने के बाद अगर आपको जीएसटीआर 2B में कोई पर्टिकुलर इनवॉइस नहीं दिख रही है तो आप उसका 3B में क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो. एंड दिस प्रोविजन हैज बीन इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 और अकॉर्डिंगली उन्होंने रूल 36(4) में अमेंडमेंट करा. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंबर्स का ये क्लियर करना चाहूंगा, ये अमेंडमेंट 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है, यानी कि जनवरी का रिटर्न जो फरवरी में फाइल होगा, दिसंबर का रिटर्न जो अभी जनवरी में फाइल होगा, उसमें स्टिल 5% की बेनिफिट बफर मुझे अवेलेबल है, क्योंकि रिटर्न इज अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन डन इन पास्ट एंड आई हैव done my transaction in the month of December. Now I am merely filing my return. So वहां पे जनवरी के रिटर्न जो फरवरी में फाइल होगा, मुझे वहां से उसको कंप्लाई करने की जरूरत है. 16(2) की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग पे अपन चलेंगे. 16(2) says the details of invoice और डेबिट नोट, ध्यान दीजिएगा केवल इनवॉइस और डेबिट नोट की बात किया है, रेफर टू इन क्लॉज A
has been furnished by the supplier in the statement of outward supply यानी कि GSTR1 या फिर IFF, and such details has been communicated to the recipient. दो condition हो गई. Furnished by the supplier is the first condition and communication of details to the recipient is the second condition in such manner as may be specified in 37. 37 बोलता है कि जो भी वेंडर है, जो भी सप्लायर है, वो अपना GSTR1 फाइल करेगा और उसमें सितंबर तक वो अमेंडमेंट कर सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इसके साथ साथ उन्होंने 36(4) में कुछ चेंजेस किए. ध्यान दीजिएगा, 36(4) हटा नहीं है, ये चेंज करा गया है मुटेटिस मुटेंडिस. पहले 36(4) की वर्डिंग थी ITC पॉजिटिव स्टार्ट होता था. 36(4) पहले पॉजिटिव वर्डिंग से स्टार्ट होता था. ITC टू बी अवेल्ड by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which has not been furnished by the supplier or using the IFF shall not exceed 5% of the eligible credit. तो अब ये कंडीशन पूरी की पूरी इसमें से हटा दी गई है. अब मैं नया रूल की वर्डिंग पढ़ूं. नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड. मैं कोई क्रेडिट ही नहीं ले सकता अगर दो चीजें सेटिस्फाई नहीं होती. सप्लायर ने GSTR1 में वो इनवॉइस को ना फर्निश किया हो और दूसरा मुझे वो डिटेल्स कम्युनिकेट नहीं करी गई हो मेरे GSTR2B में. सो ये दो कंडीशंस मेरे लिए मैंडेटरी है. एक बार ट्रांजिशन को इग्नोर करते हुए लॉ को प्लेन समझेंगे. आज की डेट में मुझे इनवॉइस मिला, क्या मैं मेयरली उसका क्रेडिट ले सकता हूं? नहीं. जब मुझे अगली महीने की 14 तारीख को उसका 2B जनरेट होगा, वहां पे वो रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद मेरी एलिजिबिलिटी हिट होगी, उसे मुझे 3B में क्लेम करने की. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं सर्टेनली क्लेम करके रख सकता हूं. सो दिस इज द प्रोविजन एज पर द प्लेन रीडिंग. अब ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई मोर और लेस वही लिखी हुई है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दो हैं, सप्लायर को फर्निश करना और मुझे वो कम्युनिकेट होना. कब से एप्लीकेबल है मैंने आपको बता दिया. ITC ऑन इनवॉइस डेटेड दिसंबर 2021, मतलब इनवॉइस की रेट मेरी दिसंबर 2021 है, लेकिन मैंने उसकी बुकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनवरी में करी. उस केस में क्या होगा सर, क्योंकि मैंने बुकिंग उसकी जाके जनवरी में करी है तो उसके रिस्क रिवॉर्ड सारे जनवरी में फाइल हो रहे हैं और वो जनवरी के प्रोविजन के हिसाब से गवर्न होगी. अगर मैंने उसकी बुकिंग दिसंबर में की होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो दिसंबर के प्रोविजन के हिसाब से गवर्न होती. 3B मेरा जनवरी का जो फाइल होगा फरवरी में, मुझे उसमें 5% का बफर नहीं मिलेगा. दिसंबर वाला जो 3B अभी फाइल होगा 5% बफर उसमें अवेलेबल है. प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसमें यह है कि 2B जनरेट होता है 14th को और केवल मेरे पास 5 या 6 दिन रहते हैं अपने 3B को रिकंसाइल करके फाइल करने में. किन किन चीजों में ये एप्लीकेबल नहीं है? बिल ऑफ एंट्री जो इंपोर्ट की डिटेल है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है. SEZ से कोई सप्लाई आई उसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे लेता हूं. वहां पे वर्ड यूज करता है इनवॉइस और डेबिट नोट. ISD इनवॉइस वहां पे वो कवर नहीं करता. RCM वाली अनरजिस्टर्ड के केस में ध्यान दीजिएगा, अनरजिस्टर्ड RCM के केस में मेरी सेल्फ इनवॉइस होती है, वो वहां पे कवर नहीं होती, तो वो भी मुझे उसमें से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ट्रांजिशन प्रोविजन थोड़ा सा समझेंगे. अगर मेरे 2B में जनवरी 22 में कोई इनवॉइस आ रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी जनवरी 22 में आ रहा है, मैं ITC जनवरी 22 में ले लूंगा. कोई जनवरी 22 मतलब जनवरी का जो 3B फेब में फाइल होगा उसमें मैं ले सकता हूँ, प्लेन वनीला केस. GSTR2B में कोई चीज मेरी जनवरी 22 में आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी सारी जो कंपनीज हैं, काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं, वो बुकिंग 2-3 महीना लेट करते हैं ड्यू टू देयर प्रोसेसेस. उनको लाइक स्टील इंडस्ट्री में मैं देखूं तो उनको क्वालिटी चेक करना होता है, उनको बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो वो करते करते 1-1.5 महीना बीत जाता है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई वो फरवरी 22 में. मेरी एलिजिबिलिटी कहाँ हिट हो रही है? मेरी एलिजिबिलिटी जनवरी में हिट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इनवॉइस की बुकिंग ही नहीं करी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो जो सेक्शन 16 की पहली कंडीशन है कि गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक कोई चीज चढ़ी ही नहीं तब तक मैं उसको एलिजिबल क्रेडिट बोल के ले नहीं सकता. तो वो ITC मुझे फरवरी 22 में लेना है. मार्च 22 में अगर 2B में दिख रहा है और बुक्स में पहले आ गया, ये केस भी बहुत पॉसिबल है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फरवरी 22 में मैंने ITC रिकॉर्ड कर ली, 2B में बाद में आया, तो ये ITC एलिजिबिलिटी मेरी मार्च 22 में हिट होगी. सो मेरा सर से, साकेत सर से सेशन से पहले डिस्कशन जो हो रहा था, उन्होंने बोला कि एक नोशन ऐसा बना हुआ है कि 2B में मुझे अगर 100 रुपए दिख रहा है तो 3B में मुझे 100 रुपए ही लेना है, मैं उससे ज्यादा या कम कभी भी नहीं ले सकता.
सो सर दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंसेस हमेशा 2B में रहेंगे। 2B इज अ स्टैटिक थिंग, वो एक पर्टिकुलर फिगर को फ्रीज कर देगा जो उस मंथ के सामने वाले वेंडर्स ने GSTR1 में जिन इनवॉइसेस को अपलोड किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे मेरे पहले 2B में कुछ इनवॉइसेस आ रहे होंगे जिनका क्रेडिट मैंने नहीं क्लेम किया क्योंकि मुझे बुक्स में बुकिंग ही नहीं की थी मैंने। इन दैट केस, टू दैट एक्सटेंट, वो डिफरेंस मेरा हमेशा चलेगा, वो चाहे रेड दिखाए, चाहे ब्लू दिखाए, या और भी कलर दिखाए। दैट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर मैं देखूं तो वो डिफरेंस एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो ये प्रैक्टिकल चैलेंज है, और आई पर्सनली फील कि डिपार्टमेंट भी इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर कोई चीज की मैंने 2B में कोई चीज पहले आ गई तो वो डिसअलाउ तो नहीं हो सकती, क्योंकि लीगली उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने गुड्स एंड सर्विस रिसीव भी की, सप्लायर ने टैक्स पेमेंट भी किया, और अब वो 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो माई क्रेडिट इज एन एलिजिबल क्रेडिट। मेयर उनका इन्फोसिस का पोर्टल वहां पे उसको रेड कर दे, मेरा क्रेडिट को कोई डीबार नहीं कर सकता। सर कुछ पॉसिबल रीजंस समझते हैं डिफरेंसेस आने के, जो मैंने एक पॉसिबल रीजन अभी आपको बताया, उसके बाद इसको करना कैसे है वो भी समझेंगे। परचेज गुड्स इन ट्रांसिट, जैसा अपन ने डिस्कस किया, ये भी रहेगा। डिले इनवॉइस बुकिंग, ये भी हमेशा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरा वेंडर ने रॉन्ग इनवॉइस डाल दिया होता है, जो कि जाके वो सब्सिक्वेंट मंथ में ठीक करता है। तो मेरी मेरी जो बुकिंग हुई है वो तो करेक्ट हुई है, मैं तो करेक्ट ITC लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरा 2B कुछ गलत रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी एक मेजर डिफरेंस का कारण बन सकता है। कुछ ऐसा केस होता है जहां पे मेरे गुड्स आए, मैंने उसका ITC क्लेम ही नहीं करा, मैंने गुड्स उसको रिजेक्ट कर दिया, और वेंडर ने क्रेडिट नोट दिया। ध्यान दीजिएगा, वेंडर ने इनवॉइसिंग करी, वेंडर ने क्रेडिट नोट दिया, मैंने कभी उसको अकाउंट फॉर ही नहीं करा, मैंने तो उसको स्ट्रेट वापस भेज दिया। सो इन दैट केस मेरा 2B में वो हमेशा वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगी, वो क्रेडिट नोट रिफ्लेक्ट करेगा सब्सिक्वेंट मंथ में, पॉसिबल है, लेकिन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एंट्री ही नहीं दिखेगी। इन दैट केस वो भी एक डिफरेंस का कारण बनेगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डिलीवरी चलान के बेसिस पे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया। जैसे मेरे क्लाइंट है, उनका एक क्लियर कट सिस्टम है, सप्लायर ने कोई गुड्स भेजे और उसकी इनवॉइस साथ में भेजी, अगर उनको समझ में नहीं आए तो इमीडिएट रिटर्न करते हैं, ITC भी वो इमीडिएट रिवर्स करते हैं इन द मंथ 1। लेकिन अगर सपोज 30 तारीख को ऐसा हुआ और वेंडर ने जो क्रेडिट नोट दिया वो नेक्स्ट मंथ में दिया, सेम एग्जांपल मोर और लेस, इस केस में भी वो डिफरेंस हमेशा टाइमिंग बढ़ के चलेगा, क्योंकि एक मंथ के 2B में मुझे क्रेडिट एक्स्ट्रा दिखाएगा और दूसरे मंथ के 2B में मुझे वो क्रेडिट नोट एक्स्ट्रा दिखाएगा। कुरियर इंपोर्ट्स अगेन वहां पे नहीं आएंगे। RCM वाली चीजें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GSTR1 में जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या जो रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं जिनकी सप्लाईज में RCM लगता है, वो सप्लाईज मुझे GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे 2B में आती है, और उसमें मुझे शो करता है कि आपको इतना मिनिमम RCM पे करना। लॉ में प्रोविजन क्या है? लॉ ये बोलता है कि इनवॉइस की डेट से 61 डेज तक मैं RCM पे कर सकता हूं इस केस में। तो लेटेस्ट से कोई इनवॉइस मेरे पास 30 तारीख को आती है ट्रांसपोर्टर की, जो कि रिफ्लेक्ट होता है मेरे नेक्स्ट मंथ के 2B में, क्या मुझे उसका उसी मंथ में RCM पे करना है? लॉ तो मुझे 61 डेज का टाइम देता है, जो कि मेरे नेक्स्ट मंथ में फॉल करेगा। इन दिस प्रैक्टिकल केस क्या होगा, जो मेरा RCM पेमेंट आएगा वो कुछ कम आएगा, लेकिन जो पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2B वो कुछ ज्यादा करेगा, और जहां मैं कम दिखाया वो मेरा रेड कर देगा, या अगर मैं ज्यादा दिखाया तो भी वो एरर दिखाता है जो अभी इनका सिस्टम प्रेजेंट है। सो ये टाइम ऑफ सप्लाई को, प्रोविजन को पूरा इग्नोर करते हुए इनका पोर्टल फंक्शन कर रहा है। तो ये भी अपने को टू दैट एक्सटेंट रिकंसाइल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप RCM की बुकिंग का जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है वो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। सो मेयरली 2B स्टैटिक है, हमको उससे रिकंसिलिएशन मैक्सिमम लेवल पे परफॉर्म करके चलने हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज 2B में एक पर्टिकुलर मंथ में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही तो मैं उस मंथ में उसका कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो पहले कभी आ गई है, और या फिर आउट ऑफ सम लीगल इशू या कोई लीगल चैलेंज के कारण वो आगे या पीछे मंथ में शो करना है, तो दैट आई कैन सर्टेनली डू, जब तक वो मुझे 3B में ऐसा कोई कॉलम नहीं देते कि ये पास्ट मंथ का है या नेक्स्ट मंथ का है। सो ये चीजें या तो उनको 3B में नए कॉलम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नई रोज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, या फिर ये टाइमिंग डिफरेंसेस हमेशा चलेंगे। एक और केस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि सप्लायर ने अपना 3B फाइल नहीं किया होता, उसने केवल अपना GSTR1 डाल दिया और उसके कारण मेरा 2B
ऑटो पॉपुलेट हो गया, क्या मैं उस आईटीसी को ले सकता हूँ? मैंने इनवॉइस बुकिंग भी कर ली, सामने वाले सप्लायर ने उसका GSTR1 भी फाइल कर दिया, जो नॉर्मल फेक इनवॉइस वाले केसेस होते हैं। या अगर अदर जेन्युइन केस भी देखूं तो सप्लायर ने किसी प्रैक्टिकल चैलेंज के कारण 3B नहीं फाइल करा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रोविजंस का इंटरप्ले है। 16(2)AA के हिसाब से मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन 16(2)B जो बोलता है कि सप्लायर का टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए तभी मैं उस क्रेडिट को क्लेम कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं उसको क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाली प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि अगर आप एक पर्टिकुलर मंथ का 3B नहीं फाइल करते हो तो हम सामने वाले का GSTR1 ही ब्लॉक कर देंगे। आगे आने वाले प्रोविजन में अपन ये देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जगह एक नई प्रॉब्लम और खड़ी कर रहे हैं कि अगर किसी ने 3B नहीं फाइल करा तो वो GSTR1 भी नहीं फाइल कर सकता। वी विल अंडरस्टैंड दैट प्रोविजन। सो दूसरा इसमें एक चैलेंज ये आता है कि जो GSTR2B है उसमें 3B फाइलिंग स्टेटस नहीं रिफ्लेक्ट करता, और अगर वो 3B फाइलिंग स्टेटस रिफ्लेक्ट कर भी दे तो क्या गारंटी है कि जो मेरी सप्लाई है, जो मेरी इनवॉइस है, उस पर्टिकुलर वेंडर ने, उस सप्लायर ने उसको 3B में इंक्लूड किया है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबलिया। अ लॉ कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली वैट के रिजिम में सेम कॉन्सेप्ट है, ये 2A 2B वाले, वहां पे 2B नहीं था 2A था। वहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला था कि आप कंपेल नहीं कर सकते रिसिपिएंट को ये चीज को करने के लिए जो सप्लायर क्या ओनस है। जीएसटी में भी देर आर मेनी हाईकोर्ट जजमेंट जो अब इस लाइन पे आने चालू हो गए। एक और लैंडमार्क जजमेंट है क्वेस्ट मर्चेंडाइज, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। सेम लाइन पे क्लियरली हाईकोर्ट ने बोला कि यू हैव टू फर्स्ट कंपेल द सप्लायर, आपको सप्लायर से रिकवरी करनी है, सप्लायर को पकड़ना है। इन दैट केस अगर सप्लायर से आप पूरा हाथ धो बैठते हो, वो नहीं मिलता है, नहीं कुछ करता है, देन आप रिसिपिएंट के पास जा सकते हो। हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात और बोली, आप रिसिपिएंट से रिकवरी कर तो लोगे लास्ट रिकोर्स के तहत, लेकिन अगर बाय एनी चांस कभी सप्लायर पकड़ाया तो आपको उसको रिफंड का मैकेनिज्म भी स्पेसिफाई करना है। सर जीएसटी में ये लोग ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये केवल ये बोलते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फैसिलिटी हो या नहीं हो दैट इज अवर प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिकली मुझे अपने सप्लायर्स पे वेंडर प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। जो जो सप्लायर पे मुझे अटूट भरोसा है, जो अच्छे सप्लायर्स हैं, उनसे ही मुझे बिजनेस करना चाहिए। जो इस टाइप के रिस्की सप्लायर्स हैं, धीरे धीरे आगे चल के उनसे बिजनेस करना डिफिकल्ट होता जाएगा और आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बन सकती है। कुछ एक चीजें होती हैं जैसे एयरलाइन का बिल, CHA का बिल, बैंक चार्जेस का बिल, ये मुझे 2B में तो रिफ्लेक्ट करेगा, पर नॉर्मली इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रीइंबर्समेंट नेचर की एंट्री पास हो जाती है। जैसे कोई एम्प्लॉई है, सो वो एम्प्लॉई कहीं ट्रेवल में गए, कोई ऑडिट में गए, तो उन्होंने रीइंबर्समेंट नाम से क्लेम कर लिया, अकाउंटिंग एंट्री भी रीइंबर्समेंट की पड़ गई। GST उसका 2B में रिफ्लेक्ट करेगा पर मेरी बुक्स में डायरेक्टली नहीं दिखेगा। सो इन दैट केस ये सारे केसेस में भी अब धीरे धीरे चैलेंज आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये 2B में रिफ्लेक्ट होंगे और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सप्लायर ने ट्रांजेक्शन को B2C दिखा दिया होता है और उसे B2C दिखा देगा तो मेरे 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली जीएसटी में ऐसा होता था कि हम सजेस्ट करते थे कि सर आप डिक्लेरेशन ले लो सामने वाले सप्लायर से कि उसने आपकी इनवॉइस पे टैक्स पे किया है 3B में, मेयरली 2A में नहीं आ रहा, वो हिसाब से आपका वेस्टेड राइट डिसअलाउ नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने 16(2)AA अमेंडमेंट करके क्या किया, ये जो मैंने बात बोली वेस्टेड राइट वाली, 16(2)AA के तहत उन्होंने आपका राइट को ही वेस्ट नहीं होने दिया। यहाँ पे इन्होंने ये मेजर चेंज लाया है। कोर्ट्स बोलते थे देयर इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जयम इंडस्ट्रीज, 2019 का जजमेंट है इन द अर्स्टवाइल रिजीम। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आईटीसी इज अ राइट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, वो राइट आपका वेस्ट होना चाहिए। तो अब इन्होंने उसको कंडीशन का ही पार्ट बना दिया, और जब तक वो मेरे 2B में नहीं आएगा तब तक वो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मेरा राइट ही वेस्ट नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेंडमेंट दे हैव डन। सो उसको रूल से निकाल के सेक्शन में लाना ऐसे ही नहीं था, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेंशन, काफी सारे कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने का उनका ऑब्जेक्टिव था। और भी इश्यूज हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई अमेंडमेंट, इनकरेक्ट डिटेल्स, ये वो ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें बहुत इशू क्रिएट करेंगी। 2A हट गया है बाय एनी चांस, शायद स्लाइड में मैंने उसको अपडेट करना भूल गया। रिलेवेंस ऑफ 2A अभी भी कंटिन्यू करता है, क्योंकि रिफंड रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर 135, वहां पे वो क्लियरली बोलता है कि आपका जो रिफंड है
जस्ट अ मिनट, आपका जो रिफंड है वो 2A से आपको जो एनेक्जर बी देना होता है वो आपको 2A से कंपेयर करके देना होता है, जो आपको आईटीसी का रिफंड लेना है। सो वो भी अभी उसमें भी अमेंडमेंट आने बाकी हैं। ये केसेस जो है आईटीसी अवेल्ड बेस्ड ऑन बुक्स लेटर 2A में आया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो 2A रिकंसिलिएशन के साथ आएगा वो आएगा क्रेडिट नोट का। ध्यान दीजिएगा, जो अमेंडमेंट है वो केवल बात करता है इनवॉइस की और डेबिट नोट की। जो अमेंडमेंट है मैंने आपको शो किया था, वो अमेंडमेंट केवल इनवॉइस और डेबिट नोट की बात करता है। मैं दोबारा स्क्रीन पे चलाता हूं। सो यहाँ पे लिखा है क्लियर इनवॉइस और डेबिट नोट। यहाँ पे क्रेडिट नोट का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? क्या मुझे क्रेडिट नोट को रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है? यानी कि अगर किसी वेंडर ने जीएसटीआर 2B में क्रेडिट नोट डाला तो क्या ना इग्नोर इट्स क्रेडिट नोट, और मैं क्या जीएसटीआर जो इनवॉइसेस दिख रही हैं क्या मैं उस पूरे क्रेडिट को ले सकता हूं और क्रेडिट नोट का रिवर्सल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे कर सकता हूं? सर जैसा सर ने बोला डिस्कशन को लाइवली रखना है, तो आप चैट बॉक्स में बिल्कुल अपने रिप्लाई डाल सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? जी नहीं, मेरा वो इनकरेक्ट अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा जहां पे वेंडर ने अपनी इनवॉइसेस को 2B में मुझे रिफ्लेक्ट करवा दिया और उसका क्रेडिट नोट दिख रहा है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट नोट को ना रिकंसाइल करूं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली गुड। तो ये मुझे करके चलना है, ऑल्दो लॉ में क्लियर नहीं दिख रहा है। कुछ केसेस अब कैसे आएंगे, क्रेडिट नोट मुझे कई बार 2B में दिखेंगे पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरे वेंडर ने मुझे क्रेडिट नोट 2B में दिखाया अप्रैल मंथ में, मेरे 2B में अप्रैल मंथ में क्रेडिट नोट दिख रहा है, लेकिन मुझे वो क्रेडिट नोट रिसीव नहीं हुआ, या रिसीव हुआ तो मेरे अकाउंटेंट ने उसको अकाउंट फॉर नहीं करा, वो मुझे आके मिल रहा है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई मंथ में। तो 2B के अप्रैल मंथ का 2B मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट का क्लियर मतलब एक ही होता है कि आपका आईटीसी रिवर्सल। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिट नोट आ रहा है जुलाई में, डिपार्टमेंट यहाँ आपसे इंटरेस्ट मांग सकता है, क्योंकि एज पर द जीएसटी लॉ जैसे ही वो क्रेडिट नोट आया उसके सब्सिक्वेंट मंथ में आपका आईटीसी रिवर्सल हो जाना चाहिए। उसी मंथ में जिस मंथ में क्रेडिट नोट रिसीव हो आईटीसी रिवर्सल हो जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस आप वहां पे बाद में आके उसको रिवर्सल कर रहे हो। सो ये सिनेरियोज हमेशा बनेंगे जहां पे क्लियर इंटरेस्ट के केसेस देखने को मिलेंगे अब आगे आने वाले टाइम में। सो इट इज बेटर कि 2B में अगर कोई क्रेडिट नोट मुझे दिख रहा है तो मैं उसका रिवर्सल उसी मंथ में करूं और बाद में उसका रिकंसिलिएशन बुक से मेंटेन करूं कि कब वो बुक्स में मेरे रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये चीज अब हमें ध्यान रख के चलना बहुत जरूरी है। रिवर्स केस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्रेडिट नोट रिफ्लेक्टिंग इन बुक्स बट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B। मतलब मेरे वेंडर ने क्रेडिट नोट को 2B में दिखाना भूल गया पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिट नोट दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ऑल्दो क्रेडिट नोट आ चुका है, लीगली मुझे उसको रिवर्स कर देना चाहिए, पर वो 2B में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा ड्यू टू वेंडर मिस्टेक। इस केस में भी आइडली एज अ प्रूडेंट टैक्स पेयर मुझे तो रिवर्सल करना चाहिए, मेरे 2B में जब वो आएगा वो मुझे रिकंसिलिएशन मेंटेन करना है, वेंडर से फॉलो अप करना है। अदरवाइज मैं नहीं करता हूं तो मेरे लिए चैलेंज है, उल्टा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट मुझे इंटरेस्ट मांगेगा। सो ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस रहेंगे। जैसा थर्ड केस है, क्रेडिट नोट बाद में इशू हुआ, सब्सिक्वेंट 2B में रिपोर्ट हुआ। सो ये मोर और लेस सिमिलर लाइन पे कि क्या रिसिपिएंट जिसने पहले क्रेडिट नोट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवर्स कर दिया और 2B में बाद में आ रहा है, तो क्या बाद वाले मंथ में अगेन वो आईटीसी रिवर्सल की बात करेंगे, क्योंकि बाद में मैंने वो आईटीसी रिवर्सल कर चुका है लेकिन 2B में वो बाद में दिख रहा है। सो इस टाइप के प्रैक्टिकल न्यूसेंसेस देयर विल बी ह्यूज। इसीलिए स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को यही जा रही है कि आप पास्ट पीरियड की रिपोर्टिंग के लिए या फ्यूचर के बाद में आने वाले रिकंसिलिएशन के लिए आप टेबल्स इंट्रोड्यूस करो, बट जब तक नहीं होता मुझे रिकंसिलिएशन मेंटेन करना है बेस्ट इंटरेस्ट में, इन सब चीजों को अपने पास बैकअप वर्किंग में रिकॉर्ड रखना है। सो ये सारे चैलेंजेस आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं। सितंबर में बात करूं, सितंबर में क्यों इतना प्रेशर होता है, क्योंकि 16(4) की टाइम लिमिट बोलती है अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इनवॉइस है तो आप उसका क्रेडिट कब तक ले सकते हो, सितंबर के जीएसटीआर 3B जो कि अक्टूबर 20 को फाइल होगा तब तक। तो नॉर्मली क्या होता था, प्रैक्टिकली सजेस्ट करते थे अपन अपने सारे क्लाइंट्स को कि अगर कोई चीज सितंबर तक 2A में नहीं आई
तो आप क्या करो, आप सितंबर मंथ के 3B में वो क्रेडिट को ले लो और रिवर्स कर दो। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली अपन ये अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते थे कि आप उसको सितंबर मंथ के 2A में ले लीजिए एंड देन उसको आप रिवर्स कर दीजिए, जब आएगा तब फर्दर क्लेम करते रहना। क्या ये मैं कर सकता हूँ? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। रीजन बताता हूँ आपको। मेरे सितंबर तक के 2B में उस क्रेडिट को रिफ्लेक्ट नहीं करा गया, वो क्रेडिट की एलिजिबिलिटी मेरी हिट नहीं हो पाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, पहले भी नहीं हिट हो पाई थी, हमने लेके उसको रिवर्स कर दिया। सर यहां लेके आप रिवर्स कर दो, उसमें चैलेंज नहीं है, लेकिन जब आप बाद में लेने जाओगे तो मैंने आपको 2 कंडीशन शुरू में बताई थी। जो क्रेडिट है, जो इनवॉइस है, वो GSTR 1 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और 2B में कम्युनिकेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 37। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 37 क्लियर बोलता है कि आपको सितंबर तक कम्युनिकेट करनी है। अगर आप सितंबर के बाद कम्युनिकेट करते हो तो वो कम्युनिकेटेड इन दिसंबर, एक सेकेंड, अगर उसको आप बाद कम्युनिकेटेड करते हो तो कम्युनिकेट इन मैनर स्पेसिफाइड अंडर 37। ये जो सेकंड कंडीशन थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। पहली तो हो जाएगी, सामने वाला कभी भी GSTR 1 भर देगा, मुझे 2B में दिख जाएगा, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, कम्युनिकेटेड टू रिसिपिएंट इन मैनर स्पेसिफाइड इन 37 क्लियरली सितंबर की टाइम लिमिट को बार दोहराता है। तो सितंबर के बाद अगर कम्युनिकेट होती है तो मुझे ये वाला जो रिकोर्स है, बाद में लेके रिवर्स करने वाला, ये भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस अब आते हुए दिख रहे हैं। सिमिलर वे में अगर कोई सप्लायर सितंबर के बाद अमेंडमेंट करता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि GSTR 1 अमेंडमेंट नॉर्मली दिसंबर जनवरी अगले साल के जनवरी तक परमिट करता है, ऑल्दो लॉ सितंबर तक करता है। सो उस केस में मेरे 2B में वो अमेंडमेंट दिख जाएगा, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या GST के लॉ के हिसाब से वो अमेंडमेंट परमिसेबल नहीं है। सो वो डिफरेंसेस हमेशा क्रिएट होके चलेंगे, जो कि मेरे 2B में इनएलिजिबल क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होंगे। सो ये मोर और लेस 2B के प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी माइंड में आ रहे होंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट मेंबर्स कि अपनी सारी क्वेरीज को नोट डाउन करें या एक बार चैट बॉक्स में डालें, क्योंकि इसकी क्वेरी अपन लेंगे तो पूरा सेशन यहीं क्लोज हो जाएगा। एक बार अपन इसके ट्रांजिशन की इश्यूज को समझते हैं, उसके बाद इकट्ठा 2B वाली क्वेरीज को अपन एक एक करके केटर टू करेंगे। ट्रांजिशन समझने के बाद हाउ टू प्रैक्टिकली परफॉर्म एंड वे फॉरवर्ड भी अपन देखेंगे। एक ही केस है ट्रांजिशन का जो मैं डिस्कस करूंगा, उसमें ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर हो जाएंगे। सबसे पहला, मुझे आज की डेट में क्या करना है, अप्रैल टू दिसंबर तक का GSTR 2B उठाना है। ध्यान दीजिएगा, 2B उठाना है, नॉट 2A। और मुझे उस 2B के साथ अपने परचेज रजिस्टर को रिकंसाइल करवाना है। जब वो रिकंसिलिएशन होगा तो पॉसिबिलिटीज ये निकल के आएंगी कि कुछ इनवॉइसेस होंगी जो मेरे 2B में नहीं आ रही होंगी। जब सारी आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, आई एम ओके। जब 100 इनवॉइसेस फॉर एग्जांपल मेरे 2B में नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, उन 100 इनवॉइसेस के अगेंस्ट में मेरा जो रिकोर्स है वो ये होगा, जो मेरी 50 इनवॉइसेस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेंडर्स आगे फाइल कर देंगे, वेंडर से फॉलोअप करने के बाद उनको मैं एज इट इज छोड़ सकता हूँ। मुझे उसमें आगे दिमाग लगाने की नीड नहीं है। वो जिस मंथ के 2B में आएगा मैं उस मंथ में उसको क्लेम 3B में कर लूंगा। लेकिन जो इनवॉइसेस मुझे क्लियर है कि ये वेंडर नहीं फाइल करने वाले, उनके लिए मैं क्या करूं? उनके लिए जो बेस्ट सजेशन है वो ये है कि आप अभी दिसंबर का जो रिटर्न जनवरी में जाएगा उसमें आप क्लेम कर लो। ध्यान दीजिएगा, मैं वो 50 इनवॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे फ्यूचर में 2B में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वो 50 इनवॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे फ्यूचर में 2B में आ जाएंगे। वो 50 इनवॉइसेस की बात कर रहा हूं जो ना आए हैं और ना आने हैं। इन दैट केस 36(4) अल्ट्रा वायरस प्रोविजन था, जो कि एप्लीकेबल है जनवरी का रिटर्न जो फरवरी में जाएगा। तो मुझे उसको अभी क्लेम करना चाहिए, सब्जेक्ट टू दैट 5% लिमिटेशन। वैसी इनवॉइसेस को जो लगता है कि वो 5% बेनिफिट में फिट हो जाएगी उसको फिट करके खत्म करो।
आपका जनवरी का जो रिटर्न फाइल होगा वो प्योर नए लॉ के हिसाब से होगा और उसमें आप जरा सा भी ये रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर 5% का बफर जो हमने अप्रैल टू सितंबर तक लिया है, वो इनवॉइसेस, दो केसेस हो सकते हैं कि वो अगेन वो 5% वाला बफर वाले इनवॉइसेस मेरे रिकंसिलिएशन में कवर हो गए या नहीं हुए। क्या अगर वो कवर नहीं हुए तो क्या वो 5% का बफर को मैं मेंटेन कर सकता हूँ? सर आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि जब वो 2B में इनवॉइसेस बाद में वापस आएंगे तो आप उसको दोबारा क्लेम बैक मत करना। आपका सिंपल तरीका यही होना चाहिए, अप्रैल टू दिसंबर तक का आप रिकंसिलिएशन करो, 5% का बफर फर्स्ट केस लेते हैं जहां पे 5% का बफर में कुछ भी नहीं है, परफेक्ट मैच हो गया, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल टू दिसंबर का मैंने रिकंसिलिएशन किया, मुझे 2 से इनवॉइसेस ऐसे मिले जो मेरे 2B में नहीं है पर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। उसमें से आपको लगता है कि 80 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो फ्यूचर में आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। 20 इनवॉइसेस ऐसा लगता है कि जो नहीं आएंगे, उस 20 को कोशिश करो अप्रैल से दिसंबर तक की 5% लिमिट में सेट करने का। अगर वो 20 के 20 सेट हो जाते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अगर वो बाकी नहीं सेट होते हैं तो वो एक हमेशा के लिए प्रैक्टिकल चैलेंज है, वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा आप उसको दिसंबर के रिटर्न में लेके रिवर्स कर सकते हो कि फ्यूचर में कभी बाई चांस आ गए तो मैं ले लूं, और आप वेंडर से डिडक्शन वगैरह वाले मोड में जा सकते हो। जो मेरे 5% में सेट हो गए उसको आप सेट कर दो, लेकिन फ्यूचर में जब वो 2B में आए तो आपको उसको क्लेम बैक नहीं करना है। फ्यूचर में जब वो 2B में आए तो आपको उसको क्लेम बैक नहीं करना है, ठीक है। ये मोर और लेस आपके ट्रांजिशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी मैंने लिया अप्रैल टू दिसंबर में 1,50,00,000 का, जिसमें से पिछले साल के पर्टेनिंग आईटीसी था 45 लाख रुपए का, वो मैं हटा दूंगा। रिकंसिलिएशन करते टाइम, ये एग्जांपल लाइव रिकंसिलिएशन करते टाइम मुझे कुछ ऐसा करना है। 1.5 करोड़ का टोटल आईटीसी था, 45 लाख पिछले साल से पर्टेन करता था, आउटरेटली हटा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बचा के इतना 1,05,00,000 का ऐसा आईटीसी बना जो अब मुझे रिकंसाइल करना है, जो मेरे 2B में आना चाहिए। अब वो 2B में जो आना चाहिए उसमें मैं जब देखता हूँ 2B तो मुझे 1 करोड़ रुपए टोटल दिखता है, बचा कितना 5 लाख रुपए। अब उस 5 लाख रुपए में कुछ ऐसा होगा जो मेरे बाद में आ जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं है। जो नहीं आएगा उसको मैं 5% की लिमिट में सेट करके देखूंगा, जो हो गया उसको मैं अवेल करूंगा, कंट्रोल रखूंगा कि मैं बाद में रीअवेल ना करूं। जो फिर भी नहीं सेट हुआ उसको मैं लेके रिवर्स करूंगा इस रिटर्न में, वो इसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लेके रिवर्स कर दूंगा, फ्यूचर में जब भी आएगा मैं उसको क्लेम बैक कर लूंगा। सो ये मोरलेस आपका प्रोसेस होना चाहिए। सो ये सारी बातें हमने मोरलेस करी। इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन को हटाते हुए हमेशा अपने को हर मंथ, अभी क्या होता था नॉर्मली 3B फाइल करते टाइम मेरे 2A में 100 रुपए आ रहे हैं, मेरा आईटीसी 2B क्लेम 90 रुपए में फाइल कर देता था। 2A में आ रहा है मेरा 100 रुपए, 3B में आ रहा है 102 रुपए, 5% के अंदर है, मैं फाइल कर देता था क्यूमुलेटिव। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, लॉ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इनवॉइस वाइज मैचिंग करने की जरूरत है, वो हमको हर मंथ में करके चलना है। सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक सिंपल लेजर इंट्रोड्यूस करवा दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसका नाम रख देते हैं आईटीसी इंटरिम लेजर। वो इंटरिम लेजर में क्या होगा, जैसे जैसे मेरी इनवॉइसेस आती जाएंगी मेरे आईटीसी के इंटरिम लेजर में वो इनवॉइसेस इकट्ठी होती जाएंगी, जो कि आज के डेट में मेरा आईटीसी का लेजर है, नॉर्मल लेजर। एक नया लेजर इंट्रोड्यूस कर दो, फाइनल आईटीसी, या जो मुझे 3B में लेना है। पहले वाले लेजर से दूसरे लेजर में जो इनवॉइसेस माइग्रेट होंगी वहां पे एक पर्सन बैठ के केवल यही करेगा, जो जो इनवॉइसेस मेरी 2B में आते जाएंगी उसको माइग्रेट करता जाएगा फाइनल लेजर में। और जो मेरा फाइनल लेजर है वो हमेशा 3B से मैच होके चलेगा, जो मेरा इंटरिम लेजर है वो हमेशा मेरी सारी इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो मेरा फाइनल लेजर है वो हमेशा मेरे 2B से मैच भी होगा। दिस कुड बी वन अप्रोच जहां पे मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो ये एक इंटरिम लेजर बना के हमने 2-3 जगह पे करवा के देखा है, काफी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। आई विल नॉट से 100%, पर काफी सारी। सो दिस इज वन प्रोसेस विच कुड बी अप्लाइड। दूसरा, इसमें YTD ईयर टू डेट कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, मंथली इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन प्लस अप्रैल से टिल डेट रिकंसिलिएशन, ये मुझे उसमें करना पड़ेगा। सो मोर और लेस ये सारी चीजें हैं जो अपने को
टू बी के पर्सपेक्टिव से ध्यान रख के चलनी है। पेमेंट रिलीज करते समय ऑब्वियसली अगर मैं अपने टू बी की चेकिंग कर पाऊं तो ये बहुत अच्छा है। वेंडर प्रोफाइलिंग, पैसा काटने वाली बातें भी मैंने आपके साथ करी। सो ये भी एक प्रोसेस है जहां पे ये होता है। नॉर्मली इंडस्ट्री फॉलो करती है कि अगर टू बी में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है सितंबर तक या किसी मंथ में, तो वो जीएसटी अमाउंट को होल्ड करके रख देते हैं, ना वो क्रेडिट को लेते हैं ना सामने वाले को उसका पेमेंट करते हैं। तो वेंडर बिल्कुल अपना वन फाइल करता है, देन सब्सिक्वेंटली उस क्रेडिट को ले लेते हैं। तो इस टाइप के जो मेथड्स हैं ये सारे अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। सो विद दिस 16(2)AA, सर कैसे करें क्वेरीज? विल इट टेक, कैन वी टेक नाउ और वी कैन टेक एट द एंड ऑफ द सेशन? I think we can take the question and answers at the end of the session so that the complete presentation will be over and then we can have a discussion over it. Perfect, sir. Perfect. So 16(2)AA के बाद जो मेजर चेंज उन्होंने किया है, जिसका बेस मैंने पहले आपको डिस्कस किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोविजन में अमेंडमेंट किया। रूल में, रूल 59(6) में इन्होंने बोला कि अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का 3B नहीं फाइल किया है तो आप करेंट मंथ का GSTR1 नहीं फाइल कर सकते। क्यों बोला इन्होंने? इसीलिए बोला ताकि वो पेमेंट ऑफ टैक्स वाली कंडीशन को ये इससे एनफोर्स करवा सके कि जिसने 3B नहीं फाइल करा वो 1 भी ना कर पाए। सो ये एक बर्डन है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं है, जैसा अपन ने देखा 2018 में, 17 में नहीं, 18-19 में अपन ने देखा कि स्टील इंडस्ट्री के पास पैसे, फंड की बहुत शॉर्टेज थी। तो लोगों ने क्या किया, 3B फाइल कर दिया पर अमाउंट डिक्लेयर नहीं करा और बाद में DRC के थ्रू पेमेंट किया, या 2-2, 3-3 महीने 3B वो फाइल नहीं करते थे, तो उनके लिए ई वे बिल ब्लॉक करने की कंडीशन लाए। सो सर एक जजमेंट मैंने कोट किया है सुप्रीम कोर्ट का, टैक्सेस में एंड डू अमाउंट टू रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप टैक्स लॉ में रेस्ट्रिक्शन लगाओ, वो अच्छा है, चलता है, बट इट इज ओनली सच टैक्सेस एज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली restricts trade that would fall within the purview of Article 301, जो बिजनेस शांति से करने की बात करता है। सो आप टैक्स लॉ में ऐसे अमेंडमेंट नहीं ला सकते, ऐसे प्रोविजन नहीं ला सकते जिससे ट्रेड का इमीडिएट नॉन फंक्शनिंग हो जाए। सो ये सारे वैसे ही प्रोविजन। इन्होंने बोला क्वार्टरली फाइलर्स के लिए अगर उन्होंने एक क्वार्टर का नहीं फाइल करा तो आप GSTR1 और IFF नहीं फाइल कर पाओगे। सो ये सारे इन्होंने अपने वाइडन करी है पावर को। दूसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंज एक ये लाया है 7512 रिकवरी का प्रोविजन था, ध्यान दीजिएगा, 7512 रिकवरी का प्रोविजन था, जो कि रीड ऐसा कुछ करता था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 7374, यानी कि शोकॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर इशू करने वाले प्रोविजन को ओवरराइड करते हुए, यानी कि इसके लिए कोई शोकॉज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, वेयर any amount of self-assessed tax is in accordance with the return furnished under 39, यानी कि आपका GSTR 3B remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on the tax remains unpaid, the same shall be recovered under 79। और 79 क्या बोलता है? आपसे रिकवरी के प्रोविजंस, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, गार्निशी लगा देंगे, ये सारी चीज। तो बिना शो कॉज नोटिस इशू करे, बिना कुछ करे, ये आपसे पैसा रिकवर कर सकते हैं आपके सेल्फ असेस्ड टैक्स का। अब इन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट किया है, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके। इन्होंने बोला है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन सेल्फ असेस्ड टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन 39। यानी कि अगर आपने कोई एक इनवॉइस GSTR1 में दिखा दी पर बाय एनी चांस आपने 3B में भूल गए, तो वो एक इनवॉइस के चक्कर में आपसे बिना शो कॉज नोटिस इशू करे, बिना कुछ ऑर्डर इशू करे, ये आपसे रिकवरी कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट को सीज कर सकते हैं। सो सिमिलर एक प्रोविजन आया था 86 से, जो ITC ब्लॉक करता था, वो भी अभी चैलेंज में है डिफरेंट लेवल में। इन्होंने ये भी चेंज किया है। सो सर कोर्ट्स इसका क्या व्यू लेंगे, ये सब बात की चीजें हैं। एज ऑन टुडे लॉ ये स्टैंड कर रहा है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बाद में उनका ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि ये जो टैक्स रिकवर करने वाली बात है, ये केवल इसलिए करा है ताकि लोग अपना 3B1 टाइम पे फाइल करते रहें, सारी की सारी इनवॉइसेस को करेक्टली डिक्लेयर करें, ताकि सामने वाला उसका प्रॉपर क्रेडिट ले पाए। हम इसको बोलेंगे कि फील्ड फॉर्मेशन उसको रीजनेबल मैनर में इंप्लीमेंट करे, पर अपने को भी पता है कि फील्ड फॉर्मेशन कितना रीजनेबल वे में उसको इंप्लीमेंट करने वाली है। सो नेक्स्ट उन्होंने जो प्रोविजन में चेंज किया है, ये बजट में आ गया था, और बजट में आने के बाद उन्होंने
बहुत ज्यादा पावर बढ़ाई है इस अपने प्रोविजन में। बात है ये प्रोविजनल अटैचमेंट की। मैं पहले प्रोविजनल असेसमेंट का आपको थेसिस समझाता हूं थ्रू अ राधाकृष्णन जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के उन चुनिंदा जजमेंट्स में से है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए जीएसटी रिजीम में। इन द एब्सेंस ऑफ issuance of notice under 74 or any other section 83 of the sections quoted in 83 of the act, one cannot draw inference that there is a pendency, ध्यान दीजिएगा, pendency of any proceeding under 74। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 83 लगाने के लिए प्रोविजन की पेंडेंसी होना, प्रोसीडिंग की पेंडेंसी होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, जो अमेंडमेंट करा उसमें इन्होंने पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग वर्ड को हटा के इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग डाल दी। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये प्रोविजन हम केवल तब इन्वोक कर सकते हैं जब देयर विल बी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। कोई बात नहीं, हम पेंडेंसी वर्ड हटा देते हैं, हम इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग डालते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, द पावर टू लेवी प्रोविजनल अटैचमेंट इज अ ड्रैकोनियन नेचर। कभी भी ये प्रोविजनली अटैच कर देते हैं बैंक अकाउंट को। The attachment will bring to business standstill, even the further collection will be affected. By utilizing the expression, it is necessary to do so, the legislature, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 83 में लाइन आएगी, it is necessary to do so, उसको कोर्ट ने समझाया, the law has evinced an intent that attachment is authorized not merely because it is expedient to do so or profitable or practicable, but it is necessary to do so in order to protect the government revenue। मतलब जब वो इतना जरूरी हो जाए कि उसके बिना गवर्नमेंट की रेवेन्यू प्रोटेक्ट ही नहीं की जा सकती, तब आपको उसको लगाना है। ये बात बताता है इज इट नेसेसरी टू डू सो। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन में कोर्ट ने बोला, कमिश्नर मस्ट बी इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओपिनियन। कमिश्नर को एक ओपिनियन फॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल मटेरियल, on the basis of which formation of opinion is based in regard to the existence of a statutory requirement। So ध्यान दीजिएगा, अभी सेक्शन को आप पढ़िए। कुछ एक और जजमेंट ऐसे आए, एक मिनट और लूंगा मैं बिफोर कमिंग ऑन टू द बेयर रीडिंग। कुछ जजमेंट ऐसे आए, उन्होंने बोला कि ये जो समन वाली बात है ये सेक्शन 83 में स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो आप प्रोविजनल अटैचमेंट का सेक्शन नहीं लगा सकते। कुछ प्रैक्टिकली केसेस ऐसे हुए कि फेक इनवॉइसेस की पार्टी को गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने समन किया, और समन करने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि ये पार्टी भागने वाली है, फेक इनवॉइसिंग में इन्वॉल्व है, या जेन्युइन भी पार्टी है, तो भी उन्होंने उनके बैंक अकाउंट को प्रोविजनली सीज करे। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने ये बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, देयर आर मल्टीपल हाई कोर्ट्स जिन्होंने ये बोला सेक्शन 70 की जो प्रोसीडिंग है वो इस लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है। ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप सेक्शन 83 नहीं लगा सकते। सर इन्होंने क्या किया, ये जो बोल्ड वाली चीजें दिख रही है ना, इसको इन्होंने ऐड कर दिया सेक्शन 83 में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, पहले यहाँ पे सेक्शन के नाम होते थे 62, 63, 64, 67, 74। अब इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे चैप्टर को डाल दिया उन्होंने, जिसमें 59 भी कवर, 60 भी कवर, 61 भी कवर। बोला द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन, ये चीज अभी भी पेंडिंग है अमेंड करना। कमिश्नर का ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल मटेरियल ओपिनियन फॉर्म होना बहुत जरूरी है 83 को इन्वोक करने के लिए। वो केवल और केवल रीजन टू सस्पेक्ट नहीं हो सकता, कमिश्नर को सस्पेक्ट होने से वो 83 नहीं लगा सकता। इट शुड बी ग्राउंड्स, वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, जो रीजंस टू बिलीव बने, वो टेंजिबल मटेरियल के बेसिस पे बनने चाहिए, जो कि उसके पास ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए, और जो ऑर्डर वो इशू करेगा उसमें वो राइटिंग में उसको लिखेगा कि हम इसको अटैच करना चाहते हैं। सो ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, और विद दिस इन्होंने अपना स्कोप को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। गाइडलाइंस आई थी कुछ 2021 में प्रोविजनल अटैचमेंट की, उसमें बोला कि प्रोविजनल अटैचमेंट डिपार्टमेंट को केवल उन केसेस में करना है जब बिना इनवॉइस के कोई गुड्स सप्लाई हो रहे हो, या फिर इनवॉइस इशू हो गई हो पर गुड्स नहीं हो, या किसी पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी ले लिया बिना गुड सर्विस रिसीव किए, टैक्स किसी पर्सन ने कलेक्ट कर लिया पर वो सरकार को पे ही नहीं कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लिया, या फिर जीएसटीआर 1 में आईटीसी पास कर दिया पर उसने 3B में पेमेंट नहीं करा।
तो ये गाइडलाइंस इशू हुई थी 2021 में, जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ये गाइडलाइंस डिपार्टमेंट को फॉलो करनी होंगी, क्योंकि सर्कुलर्स आर मैंडेटरी ऑन द डिपार्टमेंट, उनको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। सो ये with this we can conclude on to provisional attachment के सेक्शन में जो अमेंडमेंट हुए हैं। रूल में 159(5) ये जो रूल है, इसमें इन्होंने बोला कि अगर आपको प्रोविजनल अटैचमेंट में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप DRC 22 कैपिटल A के तहत अपने ऑब्जेक्शन आप दे सकते हो। सो ये उन्होंने मोर और लेस इसमें चेंजेस सजेस्ट किए। अब हम आते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट सेट के दूसरा मेजर अमेंडमेंट में, जो कि आपका ई-वे बिल से पर्टेन करता है। ई-वे बिल वाले सेक्शन 129 है, सेक्शन 130 है। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू दिस अमेंडमेंट या इस सेक्शन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और भी रिलेवेंट इंडस्ट्रीज में ऐसा 2017 से बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं वो रास्ते में गाड़ी पकड़ते हैं। गाड़ी पकड़ने के बाद किसी भी एसएससी की बात नहीं सुनते। गाड़ी पकड़ाई, फटाफट शोकॉस नोटिस इशू करा, रिप्लाई नहीं लिया, रिप्लाई नहीं लेने के बाद इमीडिएट डिटेंशन का ऑर्डर दिया। डिटेंशन का ऑर्डर देने के बाद शोकॉस नोटिस इशू करी, अगेन दूसरी शोकॉस नोटिस, जो डिटेंशन की नहीं, जो टैक्स इंपोज करने की है। शोकॉस नोटिस इशू करने के बाद उनको बोला आपको कुछ बोलना है क्या? खाली बोला, पूछा नहीं, खाली बोला। उसके बाद इमीडिएट उनको ऑर्डर दे दिया, आप टैक्स और पेनल्टी जमा करो, तभी हम आपकी गाड़ी को छोड़ेंगे, अदरवाइज गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने टैक्स और पेनल्टी जमा करवाई। कितनी होती थी टैक्स और पेनल्टी? जितना टैक्स मेरी इनवॉइस में रिफ्लेक्ट करेगा उतना मुझे टैक्स देना है, और प्लस 100% पेनल्टी दोबारा देनी। ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया कि कोई पर्सन अगर खाली इनवॉइस पे सप्लाई कर रहा है गुड्स को, या बिना इनवॉइस के सप्लाई कर रहा है, तो हम उससे उसका टैक्स अमाउंट को ले लें और उसके ऊपर 100% पेनल्टी लगा दें। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई अगर जेन्युइन पर्सन है और जेन्युइन पर्सन GSTR 1 इशू कर रहा है, सप्लाई सेल इनवॉइस इशू कर रहा है, उसको बेचारा वो टैक्स GSTR 1 में भी पेमेंट कर रहा है, 3B में भी पेमेंट कर रहा है। दोनों में पेमेंट करने के बावजूद अगर उसकी गाड़ी पकड़ा रही है क्योंकि उसने प्लॉट नंबर गलत लिख दिया, इनवॉइस नंबर गलत लिख दिया और कोई क्लरिकल एरर कर दिया, उसका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, फिर भी टैक्स उसका मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने उसका टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया है, स्टिल वो मेरे से दोबारा टैक्स लेते हैं, दोबारा पेनल्टी लेते हैं, फिर वो गाड़ी को रिलीज करते हैं। और एक टैक्स पेयर जिसने 1 और 3B में उसका टैक्स पे किया है, नहीं करेगा तो 1 और 3B में डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे वो क्या कर देंगे, मेरा सेल्फ असेसमेंट वाला प्रोविजन लगा देंगे, रिकवरी कर लेंगे। अगर जिसने टैक्स पे किया है मजबूरी में करेगा ही, उसके बाद अगेन उससे आप टैक्स और पेनल्टी ले रहे हो। ये बात चली गई कोर्ट्स में। कोर्ट्स ने बोला कि सर आप टैक्स तो दोबारा नहीं ले सकते, आपने टैक्स एक बार ले लिया, आप केवल पेनल्टी ले लो। उस चीज को ओवर रूल करने के लिए इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, इन्होंने जो 100% टैक्स और 100% पेनल्टी था उसको अमेंड करके बोला भाई साहब 200% पेनल्टी। कोर्ट भी खुश हो जाओ, टैक्स पेयर भी खुश, डिपार्टमेंट भी खुश, हम आपसे टैक्स दोबारा नहीं ले रहे, हम आपसे 200% पेनल्टी ले रहे हैं। ये उन्होंने अमेंडमेंट करा। कैन वी मूव अहेड? उसके बाद बाकी पूरा का पूरा सेक्शन एज इट इज है। एक इंपॉर्टेंट चेंज पूरे सेक्शन में इन्होंने और किया है, मैं बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने और किया है, जहां जहां 100% टैक्स था वो तो हटा के 200% पेनल्टी कर दी। उसके बाद ओनर को बोला कि अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप उसकी सिक्योरिटी दे दो, प्रोविजनल बॉन्ड दे दो। ये प्रोविजन पहले भी एग्जिस्ट करता था। दूसरा उन्होंने सेक्शन में अमेंडमेंट ये किया है कि जो नोटिस सर्व करनी है, उन्होंने बोला कि डिटेंशन सीजर के 7 दिन तक आपको नोटिस सर्व करनी है और नोटिस की सर्विस की डेट से 7 दिन तक आपको ऑर्डर इशू करना है। पहले ये टाइम लिमिट लॉ में स्पेसिफाइड नहीं थी, अब उन्होंने क्या बोला कि ये लॉ में हम टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को अपने रिप्लाई देने हैं वो दे पाएंगे और जो ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं वो अपील कर पाएंगे। पॉइंट ये है सर कि इन्होंने टाइम लिमिट दे दिया पर प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट इसको नहीं सुन रहा है और इसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इमीडिएट होता क्या है कि एक बिजनेसमैन जिसकी गाड़ी फंसी होती है उसके पास एक कमिटेड टाइम होता है कि हम आपको गुड्स इतने दिन में पहुंचा देंगे। उसके पास 7-7 14 दिन नहीं होते
कि वो गाड़ी वहां पे खड़ी रखे और उसके बाद उनके साथ ऑर्डर और ये कार्रवाई करे। उसको सेम डे अपनी गाड़ी छुड़वानी होती है, तो उसके पास रिकोर्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करके लाने का रिकोर्स होता है। सो वो अपनी गाड़ी निकलवाता है और बाद में वो अपील पे जाता है, एंड अपील पे ट्रिब्यूनल आज की डेट में स्टैब्लिश नहीं है, कमिश्नर अपील तक केस जाता है और कमिश्नर अपील एडवर्स ही ऑर्डर देता है। मैंने कम से कम भी जितने भी केसेस किए उसमें हार्डली 2 या 3 केस ऐसे जहां पे फेवरेबल ऑर्डर मिला है, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया। So this is not the solution of the problem what they have given time limit जो 7 दिन का दिया है, it is good, let us see, but here यहाँ पे कोई practical अपने को solution चाहिए। There is a circular also ई-वे बिल के कंटेक्स्ट में जो डिपार्टमेंट ने दिया था 2020 में, वो सर्कुलर ये बोलता है कि जहां जहां पे क्लरिकल एरर्स हैं उसको डिपार्टमेंट को इग्नोर करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट इज नॉट एट ऑल फॉलोइंग। कई बार इनवॉइस नंबर में छोटी सी गलती होने के कारण, कई बार ई-वे बिल मेयर एक्सपायरी होने के कारण वो गाड़ियां पकड़ रहे हैं, वो टैक्स पेनल्टी लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली। हाईकोर्ट्स, हर स्टेट के हाईकोर्ट्स कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि इसमें विद द इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। विदाउट इंटेंट ऑल्सो दे आर मेकिंग अ मैश आउट ऑफ दिस प्रोविजन। सो अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज अगेन रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्शन। जहां भी अपने को लगता है वी शुड आस्क देम फॉर प्रोविजनल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड वाला ऑप्शन है, हमको उनसे बोलना चाहिए कि सर हम टैक्स नहीं दे सकते, हम आपको बैंक गारंटी, हम आपको और कोई सिक्योरिटी दे देंगे। ये एक सॉल्यूशन है जो अगर वो मानने को तैयार है तो उस उन्होंने ये आगे चल के ये बोला, अगर आप नहीं पे करते हो तो क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 15 दिन में टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है। अगर नहीं पेमेंट होता है तो क्या होता है? मेरे व्हीकल का कॉन्फिस्केशन होता है, गुड्स का कॉन्फिस्केशन होता है। पेरिशेबल हजार्डस होगा तो मुझे उसमें रिप्लाई अप्लाई का भी ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलेगा, वो बेच सकते हैं। अगर पेरिशेबल नहीं होगा तो मुझे उसमें रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, मेरे गुड्स को बचाने का टैक्स पे करके ऑप्शन मिलेगा। और ट्रांसपोर्टर को उन्होंने ऑप्शन दिया, कई बार ऐसा होता है कि बेचारे ट्रांसपोर्टर की गाड़ी पकड़ा जाती है, वो कॉन्फिस्केट हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टर को बोला भाई अगर सामने वाला पर्सन नहीं आया कोई बात नहीं, तू मुझे पेनाल्टी दे दे या फिर INR 1 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, और तू अपनी गाड़ी तो ले जा, कन्वेंस तो ले जा, हम तेरी कन्वेंस को एटलीस्ट छोड़ देंगे विच एवर इज लोअर अमाउंट लेके। सो ये उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर के लिए अमेंडमेंट इसमें इंट्रोड्यूस करा है। अब हम आते हैं सेक्शन 130 में, ध्यान दीजिएगा। एक जजमेंट आया था गुजरात हाई कोर्ट का, सिनर्जी फर्टिकेम, मुझे ध्यान भी नहीं था पीपीटी बनाते टाइम, अभी मुझे वो अचानक स्ट्राइक किया। 129 और सेक्शन 130, ये दोनों सेक्शन नॉर्मली हमने टेक्स्ट लॉ में ये समझा है बचपन में जब हम पढ़ते थे, और देखा भी जो प्रैक्टिकली है, कि कभी भी कोई व्हीकल डिटेन हो गई या कभी भी कोई गुड्स डिटेन हो गया और उसमें मेरा इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो जो इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स है वो स्टैब्लिश हो जाने के बाद अगर मैं पैसा नहीं दे पाता तो मेरे गुड्स को वो कॉन्फिस्केट करते हैं। और कॉन्फिस्केट का मतलब हमने पढ़ा था ओनरशिप ट्रांसफर करना, यानी कि क्या वो पहले वो अपने बाकी हथकंडे अपनाएंगे हमसे पैसा लेने के, और अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो वो मेरे गुड्स को कॉन्फिस्केट करेंगे। सेक्शन 129 और सेक्शन 130 भी हम ऐसा ही समझते थे कि सेक्शन 129 में गाड़ी डिटेन हुई, अगर 15 दिन में पैसा दे देता है तो अच्छी बात है, 15 दिन में अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो दे कैन कॉन्फिस्केट माय व्हीकल एंड गुड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और उसके बाद वो उसको बेचेंगे, ऑक्शन करवाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सिनर्जी फर्टिकेम करके एक जजमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट का, और उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट करके एक पैनोरामा इंडस्ट्रीज ऐसा करके कोई एक जजमेंट आया। ये दो जजमेंट बैक टू बैक आए जिसमें ये बोला गया कि सेक्शन 129 और सेक्शन 130 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये दो सेक्शन अलग अलग सेक्शन हैं, यानी कि ये दोनों सेक्शन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली इंपोज की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेक्शन की प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली इंपोज की जा सकती है। तो मतलब एक प्रैक्टिकल केस ऐसा हुआ जहां पे एक पर्सन ई-वे बिल भूल गया था और वो इनवॉइस लेके अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा था, तो डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा और उसको दो नोटिस दिए, एक अंडर सेक्शन 129 और एक अंडर 130। 129 का जो नोटिस था वो 100% टैक्स 100% पेनाल्टी, और 130 का जो नोटिस था वो अगेन 100% टैक्स और 100% पेनाल्टी का। सो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज हुआ और ये मैटर गया हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट ने भी बोला कि ये दो सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन है,
केवल 129 सबसेक्शन 5 में ये लिखा होने से कि 129 में 15 दिन तक अगर किसी ने पेमेंट नहीं करा तो हम उसका 130 में कॉन्फिस्केशन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम कॉन्फिस्केशन प्रोविजन को साइमल्टेनियसली नहीं लगा सकते। और उन्होंने ये भी बोला कि इसका स्टेट गवर्नमेंट सुटेबल अमेंडमेंट करे। बस नेगेटिव जजमेंट है इमीडिएट देख लिए सर, 2 अमेंडमेंट बैक टू बैक ले आए ये 129 और 130 में। 129 में जहां जहां 130 का रेफरेंस था हटा दिया, सेक्शन 129 में 130 का रेफरेंस हटा दिया। मैंने जो ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पे, confiscation can now be made only if the following ingredients of 130 are present, और बोला 130 129 से इंडिपेंडेंट है, 130 में ये केसेस सेटिस्फाई होंगे तो मैं 130 भी कर सकता हूं। सो और 130 में जहां जहां 129 का रेफरेंस था वो पूरा हटा दिया। तो आज की डेट में अगर आपकी गाड़ी बिना ई-वे बिल के जाती है और 130 के भी इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं तो आपके ऊपर साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग लग सकती है, 129 की अलग से 130 की अलग से। दिस इज लॉ एज ऑन टुडे एंड कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग एज ऑन टुडे। अच्छी बात इन्होंने ये करी कि 130 सबसेक्शन 3 में इन्होंने पहले एक वर्डिंग लिखी थी कि अगर आपने टैक्स और पेनल्टी दी है, नहीं 130 के तहत अगर आप फाइन दे रहे हो, then also you will still be liable to pay tax penalty charges, ये वो ब्ला ब्ला अंडर सेक्शन 130 itself, वो उन्होंने अब हटा दी। उन्होंने बोला कि 130 में हम केवल आपसे फाइन ही लेंगे और 129 में हम आपसे टैक्स और पेनल्टी लेंगे। बड़ी बात यह है कि टैक्स, पेनल्टी और फाइन का अमाउंट तीनों का 100, 200 और 100% है, तो टोटल 300%, टोटल 300% of the tax amount, 200% penalty and 100% of the tax award, ये मुझे आज की डेट में पे करना है। दिस इज द पोजीशन ऑफ लॉ एज ऑन टुडे। सर फ्रेंकली स्पीकिंग, जीएसटी में अगर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में फोकस करना है, और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, बड़ी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो सर आपकी ई-वे बिल वाला मैकेनिज्म सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 1 रुपए की, 1 पैसे की और 1 लेटर की गलती भी आपको इतने बड़े बड़े प्रोविजंस के बीच में फंसा सकती है, एंड जिसका टू माय बिलीव जो सॉल्यूशन है वो बहुत डिलेड है। सो ये चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ई-वे बिल एक्सपायरी होने से पहले आप उसको अमेंड करिए, एक्सटेंड करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्ट में बाकी जाके रिकोर्स नहीं मिलेगा, 2-3 जजमेंट आए हैं फेवरेबल कमिश्नर अपील लेवल पे, और जब ट्रिब्यूनल बन जाएगा और जो हाई कोर्ट्स हैं वो कंटिन्यू फेवरेबल ही व्यू दे रहे हैं, पर फेवरेबल व्यू देने के बाद भी रिफंड लाना ये 6-7-8 महीने का, 10 महीने का प्रोसेस है, और हो सकता है वो ज्यादा भी लग जाए। सो अपने क्लाइंट को ये सब चीजों से बचाने के लिए प्रैक्टिकली इन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। नए प्रोविजन ट्रांसपोर्टर्स को बताना अगेन बहुत जरूरी है। जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अपने ट्रांसपोर्टर के साथ जहां पे टैक्स और पेनल्टी की बात है, उन एग्रीमेंट को भी अमेंड अपने को करके चलना है। अब एक और अमेंडमेंट उन्होंने करा, आप लोग इससे बिल्कुल वाकिफ होंगे, जो कलकत्ता क्लब का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअलिटी की बात की थी। उन्होंने बोला था म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल होना, ये होना बहुत, जहां पे भी मेंबर्स और उसके क्लब्स होंगे, एसोसिएशन होंगे, वहां पे मेंबर्स और उसके क्लब के द्वारा दी गई सर्विसेज को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, हम उसको सेम पर्सन, सेम इंडिविजुअल मानेंगे। जैसे ही कलकत्ता क्लब का जजमेंट आया था, एक अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया था, उन्होंने ये लाइन लिखी, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स, यानी कि कोई क्लब एसोसिएशन जब अपने मेंबर के साथ या कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन करेगा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो हम उसको सप्लाई बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो उसको सप्लाई बोलेंगे। और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any other law for the time being force judgment degree blah blah, the person and its members or constituent shall be deemed to be two separate persons। जो कोर्ट का जजमेंट था हु बहू ओवरराइड कर दिया, उसको 2 सेपरेट पर्सन डीम कर दिया। तो इसका मतलब क्या, जितने भी कॉलोनीज होती हैं जिसमें जो क्लब्स एंड एसोसिएशन होते हैं, जहां पे ये व्यू लेके चल रहे थे कि म्यूचुअलिटी है, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, पूरा का पूरा रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, ये जो मैंने शायद पीपीटी में इसमें 2022 लिखा है, ये 2017 से, 1/7/2017 से इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया गया है और क्लियरली बोला है कि उसको डीम कर रहे हैं हम कि वो सेपरेट पर्सन है। तो इसका मतलब अगर कोई कॉलोनी है
और वहां पे कोई क्लब एसोसिएशन चल रहा है जिसपे उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 7500 पर यूनिट की एग्जाम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। अदरवाइज आपको विद इंटरेस्ट लाइबिलिटी आज की रेट में विद दिस अमेंडमेंट आ गई है। शेड्यूल 2 में एक ऐसा प्रोविजन था जो कि क्लैरिफाई करता था कि गुड्स की सप्लाई ओपीबीओई से, उसका अब कोई रिलेवेंस नहीं था क्योंकि मेन सेक्शन का पार्ट बना दिया, तो उसको हटा दिया गया। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्लब क्लब अपन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पर ये अमेंडमेंट का आप स्कोप को देखिए। द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स, यानी कि पार्टनर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पार्टनरशिप फर्म के आप मेंबर नहीं होते, पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट तो होते हो। तो क्या पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के लिए कुछ करती है? सो इट कंसर्न्स ऑल द सीएस आल्सो। वी फंक्शन एज अ पार्टनरशिप फर्म फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यहाँ पे कवर हो जाएगा प्राइमा फेसी लॉ की रीडिंग से। कोर्ट्स टू डिसाइड द एक्चुअल व्यू। सो ये जो डीमिंग फिक्शन इन्होंने क्रिएट किया है, ये एक मेजर प्रॉब्लम लाने वाला है इंडस्ट्री के लिए। कुछ उन्होंने बाकी की चीजों में अमेंडमेंट किया, जैसे कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए मैंडेटरी, ताकि हम फेक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके कैंसिल कराते टाइम। ये एक अच्छा मूव है। रिफंड फाइल करते टाइम, चाहे आपका 96 का रिफंड हो या 89 का, इन्वर्टेड ड्यूटी, विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट, आपका मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए। किसका आधार लगेगा? प्रोप्राइटर, कर्ता, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सारे लोगों का लगेगा। अगर आपका आधार नंबर नहीं आया है तो बैंक आईडी, वोटर आईडी, ये सबसे लगेगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है? अगर इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, खुद गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी हो, तो आप एग्जेम्प्टेड हो। कुछ अमेंडमेंट और ये हुए कि 99C की ड्यू डेट वो फरवरी 28 2022 तक बढ़ा दी। उम्मीद का नहीं पता, बट मुझे तो लगता है कि ये और नहीं बढ़नी चाहिए। जॉब वर्क का जो ITC 04 जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। जो क्वार्टरली ITC 04 जाता था, उन्होंने बोला कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको हाफ ईयरली फाइल करना है, अदरवाइज साल में एक बार आपको ITC 04 फाइल करना है। कब से इफेक्टिव है? अक्टूबर 2021 से इफेक्टिव है। अगर आपको CGST SGST की जगह आपने अगर IGST पेमेंट किया, या वाइजे वर्सा IGST की जगह CGST SGST, तो आपको 2 साल की रिफंड की टाइम लिमिट लगेगी। केवल आप उसको 2 साल के अंदर अंदर ही करेक्ट टैक्स पे करके रिफंड ले सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का स्कोप को बढ़ा दिया 30 नवंबर 2022 तक। एक और इंपॉर्टेंट चेंज आया, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का जो HSN कोड है वो इंडिया में अडॉप्टेड है, वो हम भी फॉलो करते हैं। जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का चलता है, उसमें कुछ चेंजेस आए थे, उसमें अपडेट्स आए हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के HSN कोड में, तो उसको टू द एक्सटेंट इंडिया में भी चेंज करने की, अडॉप्ट करने की जरूरत है। सो कमिश्नर की कुछ पावर को बढ़ा दी गई है। कमिश्नर को बोला है जनरल पावर कि आप किसी भी आदमी को बोल सकते हो कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन दो किसी भी GST के इशू से रिलेटेड, और वो ऑर्डर इशू कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कमिश्नर एक चार्टेड अकाउंटेंट से भी जनरल ऑर्डर इशू करके आपके कोई भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। एडवोकेट्स यहाँ पे सेव है इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू, क्योंकि एडवोकेट्स को पावर दी गई है कि अपने क्लाइंट्स की बातें गोपनीय रख सकते हैं, पर हमारे पास ये पावर नहीं है। तो वी शुड रिक्वेस्ट अवर इंस्टीट्यूट कि हमको ये पावर दी जाए, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है जो कमिश्नर हमसे अब डायरेक्टली ले सकता है। कुछ एक मेजर चेंजेस और हुए हैं, जहां जहां पे एग्जेम्पशन थी और जहां जहां पे रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स था, इन वर्डिंग्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी क्या होते हैं और गवर्नमेंट क्या होती है, पहले ये समझिए। गवर्नमेंट मतलब एज पर आर्टिकल 153 कैपिटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड इट्स ऑफिसर्स। यानी कि गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट और उसके ऑफिसर्स जो संवैधानिक पद हैं। GST डिपार्टमेंट है, GST का बोर्ड CBIC है, ये सारे गवर्नमेंट हैं। क्या गवर्नमेंट नहीं है? कोई एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी, CSPDCL, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इट्स अ लिमिटेड कंपनी, इसके एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन
जो गवर्नमेंट है उसके एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सो गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी में एक फर्क समझना जरूरी है। क्या गवर्नमेंट कंपनी एक गवर्नमेंट होती है? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट और उसके अपॉइंटीज, स्टेट गवर्नमेंट और उसके अपॉइंटीज, गवर्नर और उसके अपॉइंटीज, दैट्स ऑल। कोई भी गवर्नमेंट का बोर्ड जो एज गवर्नमेंट फंक्शन करता है वो गवर्नमेंट में इंक्लूड है, लेकिन कोई भी अथॉरिटी एंटिटी चाहे 50% होल्डिंग हो, 90% होल्डिंग हो, वो गवर्नमेंट में कवर नहीं होती। आपको ये बातों का आरसीएम के ट्रांजेक्शन में भी ध्यान रखना है, जो अभी अमेंडमेंट से कोई रिलेवेंस नहीं है, पर मैंने देखा है बहुत सारी जगह जहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस बोर्ड है, उसके नॉर्म्स में क्लियरली लिखा रहता है कि ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है एंड इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाम पे लिमिटेड आ रहा है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो गवर्नमेंट है, और हमको लगता है गवर्नमेंट है तो हम उसमें आरसीएम देते हैं। नो नीड ऑफ गिविंग आरसीएम ऑन दोस ट्रांजेक्शन, दैट इज देयर कंप्लायंसेस। अगर कोई माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो लॉ में मुझे कंपेल किया गया है कि मैं उस लॉ में मुझे कंपेल नहीं किया गया है कि मैं उसमें आरसीएम पे करूं, दैट इज देयर बर्डन, दे हैव टू डिस्चार्ज। आप पे करके क्रेडिट ले रहे हो वो ठीक है, पर जहां क्रेडिट नहीं मिलती वहां तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हर एक केस में, हर एक गवर्नमेंट पेमेंट को, हर एक फीस एंड टैक्सेस को आपको एग्जामिन करना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और क्या इस टाइप की ऑटोनोमस बॉडी के पास जा रहा है। अमेंडमेंट पे मैं अपने आप का स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। गवर्नमेंट की जहां जहां बात है कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जहां जहां गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी की बात है वो क्या होती है, जो या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप होती है या फिर 90% ऑफ इक्विटी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ज्वाइंटली होता है। इनके केसेस में चाहे रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, कैनाल का कॉन्ट्रैक्ट था, डैम का कॉन्ट्रैक्ट था, अदर बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट था, रोड्स, आई एम सॉरी, रोड का नहीं, ब्रिज का नहीं, डैम, कैनाल, अदर देन बिजनेस वाले जो केसेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं वो, और स्पेसिफाइड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां जहां ये कॉन्ट्रैक्ट है वहां वहां पे रेट 12% से हटा के 18% कर दिए गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। एक इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन थी जो कस्टम मिलिंग में थी, और नॉट ओनली कस्टम मिलिंग, कई चीजों में थी, फ्लोर मिलिंग में भी थी, जो कि रीड करती थी कि सर्विसेज सप्लाइड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी इन द नेचर ऑफ प्योर सर्विसेज, मतलब जब आप सर्विसेज देते हो प्योर नेचर की, या फिर 25% गुड्स कंपोनेंट की, एग्जाम्पशन 3(3) ऑफ द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, वहां पे गुड्स का कंपोनेंट 25% से कम होता है इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, वो वाली सर्विसेज को एग्जाम्पशन थी। तो ये जो राइस मिलर, फ्लोर मिलर थे उस एग्जाम्पशन में आते थे, क्योंकि जो मार्कफेड थी, जो ये मार्कफेड थी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, और ये कस्टम मिलिंग के जो सर्विसेज देते थे या तो वो प्योर सर्विसेज होती थी, या अगर फोर्टिफाइड राइस अवेलेबल है तो वहां पे क्या होता था, गुड्स का कंपोनेंट होता था जो कि नॉर्मली 25% से कम होता था, और अगर बारदाना या कुछ ऐसा सेल है या पैकिंग मटेरियल सेल है तो 25% से कम है तो एग्जेम्पशन थी। ध्यान दीजिएगा ये एग्जेम्पशन हटा दी गई। आपके कोई भी राइस मिलर को 1 जनवरी 2022 से ये एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली, उनको जीएसटी लगाना पड़ेगा, और जो क्लैरिफिकेशन लास्ट ईयर आए, जो सर्कुलर लास्ट ईयर आया, उसका रिलेवेंस इन्होंने खत्म कर दिया है क्योंकि उनको ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हो रही थी। सो जहां जहां पे भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी के नाम पे कोई एग्जेम्पशन थी वो हटा दी, जहां पे प्योर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में चीजें फॉलो हो रही है वो एज इट इज कंटिन्यू है। हर एक क्लाइंट के हर एक कॉन्ट्रैक्ट को डीप में एग्जामिन करना जरूरी है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कई जगह पे माइनिंग रॉयल्टी माइनिंग कॉर्पोरेशन को पे होती है, जो कि स्पेसिफाइड एरिया होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि स्पेसिफाइड एरिया होते हैं जहां पे गवर्नमेंट खुद कंट्रोल नहीं लगा पाती, वहां पे वो माइनिंग कॉर्पोरेशन को वो अथॉरिटी देती है कि आप इस पे माइनिंग रॉयल्टी कलेक्ट करो, उस पे आरसीएम मुझे नहीं देना है, नहीं देना है, और जहां पे मुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट है वहां मुझे आरसीएम लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहीं फॉलो नहीं हो रहा। इस टाइप के माइनिंग कॉर्पोरेशन अपने आप को सरकार ही समझ रहे हैं, इवन दो अग्रवाल हिंदुस्तान का एक जजमेंट है हाईकोर्ट का, आई गेस, वहां पे क्लियरली बोला है कि सरकार और सरकार के द्वारा बनाई गई बॉडी में फर्क है। ये फर्क हमको महसूस करना और हमको अपने रिलेवेंट वेंडर्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ एक और अमेंडमेंट है, जैसा हमको पता है रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल,
ये जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के तहत आते हैं, जैसे उबर ओला के थ्रू हम जब ये रेडियो टैक्सी मोटर कैब बुक करते हैं तो उबर ओला को टैक्स पे करना होता है, इसमें ड्राइवर्स को टैक्स पे नहीं करना होता, इवन दो जो सर्विस दे रहा है वो ड्राइवर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक डीमिंग फिक्शन है कि उबर ओला को इसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे ओमनी बस को ऐड कर दिया और एनी अदर मोटर व्हीकल को ऐड कर दिया। उसका रीजन ये था कि जब आप उबर में देखते हैं तो आज के डेट में आपको ऑटो और ओमनी बस भी मिल जाता है। सो कोई मेजर इसमें चीज नहीं है। कुछ इन्होंने एग्जेम्पशन हटाई है। जो एक एग्जेम्पशन थी कि नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, मतलब अगर कोई ऐसी बस है जिसे मैं पूरे ठेके में बुक किया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में बुक किया हूँ, वहां पे वो एग्जेम्पशन हटा दी गई है। अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, ये वो स्टेज कैरियज अदर देन एयर कंडीशन, जहां पे बस रास्ते में रुक रुक के जाती है, लेकिन अगर वो एयर कंडीशन नहीं है तो वहां पे एग्जेम्पशन थी, उसको भी इन्होंने हटा दी। मतलब हर एक तरह की बस सर्विसेज में एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन नहीं है। रेस्टोरेंट को लेके कुछ मेजर अमेंडमेंट आए। आज के डेट में कुछ भी अपने रेस्टोरेंट क्लाइंट्स होते थे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते थे तो उनको नॉर्मल जीएसटी बिल देना होता था। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई आप स्विगी जोमेटो के तहत सप्लाई कर रहे हो 1 जनवरी 2022 से, उसका टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, आप स्विगी जोमेटो उसको पे करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा होटल है जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 पर डे पर यूनिट से बड़ा है, इन दैट केस वहां सप्लायर को ही टैक्स देना है, वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं है। अगेन मैं क्लियर बोल रहा हूं, जहां पे मेरा रेस्टोरेंट है या फिर होटल कम रेस्टोरेंट है, होटल में अगर मेरा डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 पर यूनिट पर डे फॉर ऑल द यूनिट से कम है, तो मेरे उन फूड सप्लाईज में थ्रू जोमेटो स्विगी मुझे टैक्स नहीं देना, जोमेटो स्विगी अपने आप देगी। लेकिन जहां पे मेरा एक भी यूनिट का, अगर कोई एक ऐसा होटल है जिस टैक्स इनवॉइस देके चलनी है, डिक्लेयर टैरिफ मतलब एक्स्ट्रा बेड ये वो जो भी एमिनिटी फैसिलिटी है वो मिला के जो मैं उससे चार्जेस ले रहा हूँ, ये वैल्यूएशन को कंसीडर करते हुए डिक्लेयर टैरिफ कॉन्स्टिट्यूट होता है। डॉक्यूमेंट क्या इशू करनी है फर्स्ट केस में, जहां पे अब मुझे टैक्स नहीं देना, मुझे सामने वाले को टैक्स देना है, मुझे डॉक्यूमेंट कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट इशू करनी है, कोई मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करनी, ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसकी टैक्स इनवॉइस इशू करनी है, मुझे उसको रिपोर्ट करना है। यस, GSTR1 में जो मेरी बैलेंस डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंट नंबर में मुझे उसको रिपोर्ट करना है, और 3B में नॉन जीएसटी सप्लाई वाले कॉलम में मुझे उसको रिफ्लेक्ट करना है। इसमें मेरे ऊपर कोई TCS कलेक्ट हो गया क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर से? नो, आपके ऊपर कोई TCS कलेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल केस अगर आपका 7500 से ऊपर वाला प्रीमाइस है, आपका जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब आप पूछोगे सर कि कोई रेस्टोरेंट वाला है और कोई रेस्टोरेंट वाला लगभग सप्लाई अराउंड 50 लाख का टर्नओवर है, तो 20-35 लाख की सप्लाई जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, 15 लाख की सप्लाई जो है वो लोकल सेल कर रहा है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि बाकी के 35 लाख में तो सामने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा है। तो सर एज पर देयर सर्क्यूलर वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा और अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या और भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए पूरा टर्नओवर काउंट होगा एज पर देयर सर्क्यूलर, नॉट माय व्यू। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि क्या टैक्स इनवॉइस आपको रेज करनी है? नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद करेगा, आपको तो इंटरनल डॉक्यूमेंट देनी है। सो वेदर सप्लाईज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो आप सप्लाई करें उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ITC रिवर्सल ऑफ ITC बाय द रेसिपिएंट? सो द आंसर इज फूड बेवरेजेस का ITC आपको अदरवाइज भी लेना अलाउड नहीं था, तो वो आपकी सप्लाईज बिल्कुल उसमें ITC आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इस पे गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, पर लीगल अंडरस्टैंडिंग यही है। अगर आपके कोई रेस्टोरेंट है जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं तो टैक्सेबिलिटी तो बिल्कुल ई कॉमर्स वालों पे आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में उसका टैक्स कंप्यूट करना है नहीं करना वो क्लैरिटी नहीं है फॉर द टाइम बिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर में उसको जबरदस्ती इंक्लूड करवा रहे हैं तो उसको 1% 2% भी देके चलना पड़ेगा रेस्टोरेंट वाले को। रिपोर्टिंग मैंने आपसे डिस्कस की। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले आपसे TCS लेंगे क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि अब टैक्स ही उन्हें पे करना है तो अब TCS वो नहीं लेंगे, अदर देन आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले हो। अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट के केस में टैक्स पे होगा क्या? यस, अगर कोई नॉर्मल जलेबी वाला है वो भी स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसकी जलेबी में अब ई कॉमर्स वाला टैक्स लगाएगा, क्योंकि यही तो रीजन था इन्होंने ये अमेंडमेंट करा। सो क्या ई कॉमर्स वाले को अपना प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स करना होगा? ताजुब की बात है सर, ध्यान दीजिएगा। स्विगी जोमेटो वालों को बोला
आप जो सप्लाईज ये वाली करोगे, लाइक दो टाइप की सर्विसेज देते हैं स्विगी जोमेटो वाले। पहली सर्विस देते हैं एक प्लेटफॉर्म की, जिसका इनवॉइस वो करते हैं रेस्टोरेंट वालों को, कमीशन लेते हैं। इन दैट केस वो कमीशन पे तो उनको जीएसटी लगाना है, वो आईटीसी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्विगी जोमेटो को ये जो डीमिंग फिक्शन के तहत जो उनके ऊपर लाइबिलिटी डाली गई है, सर्क्यूलर बोलता है, ध्यान दीजिएगा, सर्क्यूलर बोलता है कि इसको आपको कैश में पेमेंट करना है, स्विगी जोमेटो वाले इसका इनपुट यूज नहीं कर सकते। तो नागपुर रायपुर अपनी जगहों के लिए रिलेवेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड होते हैं ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। उन्होंने बोला कि आपको कैश में पेमेंट करना है थ्रू सर्क्यूलर, पर सर लॉ के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सर्क्यूलर के तहत वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कैश में आप पेमेंट, कैश के थ्रू आप पेमेंट करोगे, मैंडेटरी है, लेकिन लीगली ऐसा कोई पोजीशन स्टैंड नहीं करता, वो आईटीसी से पे करने के लिए एलिजिबल है। सो दूसरा उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आपका कैश लेजर का बैलेंस है तो रिफंड का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना उसमें कोई सीए का सर्टिफिकेट चाहिए अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए। जो आपका टीडीएस टीसीएस कटा है एज अ सप्लायर, कौन काटता है? कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी। राइस मिलर्स का मार्केट ने टीडीएस टीसीएस काटा था, वो भी अगर एक्सेस पड़ा हुआ है तो हम आपको रिफंड दे देंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में इन्होंने बोला कि 2 साल का टाइम है रिटर्न फाइलिंग की रेट से। ये कुछ रिफंड रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस थे। लास्ट 10 मिनट्स में लूंगा आपका जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स पे। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है सर। वीकेसी फुटस्टेप में गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था, अगर आपका आउटपुट का रेट लोअर है और आपका करस्पॉन्डिंग इनपुट सर्विस या इनपुट्स ज्यादा रेट का है, तो हम आपको इनपुट सर्विस एलिमेंट का भी इन्वर्टेड ड्यूटी में रिफंड देंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनिंग रॉयल्टी 18% पे इन्वर्ट साइड टैक्सेबल होती है, लेकिन जो माइन से डोलोमाइट निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है, वो 5% पे टैक्सेबल है। कुछ तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन जाता है। करोड़ों रुपए लोगों के अटके हुए हैं, पर यहाँ पे रिफंड नहीं दे रही थी डिपार्टमेंट। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला और रिफंड आप दे दो, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उस पे क्लियर कट बोल दिया है कि इनपुट सर्विस पे रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्ली है गुजरात हाईकोर्ट की, ये सब्सटेंस लैक करती है। ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड, आप इन्वर्ट साइड जो आपका इनपुट सर्विसेज हैं उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, और कैपिटल गुड्स तो आप पहले भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लॉ की वर्डिंग है वहां पे इनपुट्स, एंड इनपुट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू इनपुट्स ओनली एंड नॉट इनपुट सर्विसेज। हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि वहां पे एक वर्ड लिखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट्स के साथ साथ वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कुड बी फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। तो ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट कर दी। हालांकि वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस व्यू, लेकिन गवर्नमेंट को ये लेटली चीजें रियलाइज हो रही है। चैप्टर 26 में जो ओर्स आते थे, आयरन ओर आते थे, कॉपर ओर आते थे, उन्होंने उसका रेट 5% से बढ़ाकर 18% में ले गए। तो एटलीस्ट इन्वर्टेड ड्यूटी वाली प्रॉब्लम उस सेक्टर के लिए तो रिजॉल्व हो गई। लेकिन चैप्टर 25 के जो आइटम है, डोलोमाइट हो गया, सैंड हो गया, उसका वो रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि जो सैंड है वो चैप्टर 25 में फॉल करती है, और सैंड का रेट बढ़ा दिए तो रियल एस्टेट वाले को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस चीज का ध्यान में रखते हुए चैप्टर 25 का रेट वो नहीं बढ़ा पा रहे। कुछ गवर्नमेंट की मीटिंग में आई वाज आल्सो इन द अपॉर्चुनिटी टू लिसन देम। उस मीटिंग में यही डिस्कशन हो रहा था कि चैप्टर 25 में क्योंकि सैंड आ रहा है तो हम डोलोमाइट लाइमस्टोन का रेट नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम जैसे ही बढ़ाए तो हमें सैंड का भी बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पे गवर्नमेंट फंसी है, और इस पे कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन लोगों का जा रहा है कि ये प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करो, खासकर अपने सेंट्रल इंडिया वाली इंडस्ट्री में। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने क्या किया था सर, उनका टू वे जुलाई और अगस्त का अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने सारा जीएसटी कैश पे कर दिया था। बाद में जब उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपने टू वे को करेक्ट पाया, क्लाइंट स्पेसिफिक, भारती एयरटेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी। बाद में उन्होंने जब देखा कि मेरा टू वे मिल गया मुझे, तो वो चाहते थे कि मैं अपना जुलाई का और अगस्त का रिटर्न को रेक्टिफाई कर लूं, क्योंकि लॉ भी मुझे परमिट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि केवल पोर्टल के नॉन ऑपरेशनलाइजेशन के कारण हम आपको लॉ के बाहर जाके रिटर्न अमेंड करने का फैसिलिटेट नहीं कर सकते। ये जो आपके ग्राउंड्स हैं कि जीएसटी एक नया लॉ है, बहुत सारी इश्यूज थे, टू ए ठीक से काम नहीं कर रहा था, टू ए में सारी चीजें ठीक से नहीं आ रही थी, वेंडर अनएजुकेटेड थे, ये ग्राउंड्स आप हमको मत बताओ। लॉ में रिटर्न अमेंड करने का प्रोविजन नहीं है, दैट इज द क्लियर केस, तो हम आपको नहीं देते। हालांकि वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस जजमेंट, इंडस्ट्री इज नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट, क्योंकि जीएसटी वाज एक्चुअली अ न्यू बॉर्न चाइल्ड और इतने सारे इश्यूज थे
चाहे मैं ट्रांजिशन के इश्यूज देखूं, ये इश्यूज देखूं, और हाईकोर्ट ने इसको कैटेगरिकली, हर स्टेट के हाईकोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं दिया। एक हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा का जजमेंट आया है जहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। शोकॉस नोटिस इशूड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पिटिशनर क्लेम्ड आईटीसी अगेंस्ट फेक इनवॉइसेस इशूड बाय नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर। हाईकोर्ट ने बोला जीएसटी एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते हो, परचेजिंग डीलर का सेलिंग डीलर के द्वारा फ्रॉड कमिट करा गया उसके लिए। मतलब सेलिंग डीलर ने कोई फ्रॉड कमिट किया तो आप उसका पहले सेलिंग डीलर को पनिशमेंट दो, आप रिसिपिएंट का आके रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसका अपन काफी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ग्राउंड्स इसमें लिए हुए हैं वो काफी वैलिड ग्राउंड्स हैं। एक एडवांस रूलिंग आई है मध्य प्रदेश की जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसने बोला नोटिस पीरियड रिकवरी में सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है नोटिस पीरियड रिकवरी में, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट देयर इज अ मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट क्लियर कट कि नोटिस पीरियड रिकवरी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट जीएसटी रिजीम में भी काफी सारे जजमेंट है, काफी सारी एआर है। तो नोटिस पीरियड रिकवरी अगर एम्प्लॉय की होती है तो दैट इज अ कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, इट इज मेयर कंडीशन। मैं कभी भी एम्प्लॉय इसलिए नहीं रखता कि वो मुझे छोड़ के जाए, मैं नोटिस पीरियड रिकवरी का प्रावधान इसलिए रखता हूँ कि एम्प्लॉय मुझे ना छोड़ के जाए। तो ना छोड़ के जाए वाली बात है, इट इज अ कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और जो सप्लाई मुझे एनालाइज करनी है वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट से एनालाइज करनी होती है, ना कि कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट से। ये लिक्विडेटेड डैमेज के नेचर का है। फर्दर नोटिस पीरियड रिकवरी सैलरी का ही कंपोनेंट होता है विच इज आउट ऑफ जीएसटी। तो ये सारे मेन ग्राउंड्स हैं जिसके तहत कोर्ट्स ने और अभी एआर ने डिसीजन दिया। कैंटीन रिकवरी का उन्होंने बोला कि कैंटीन रिकवरी में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में जो क्लाइंट है, जो एसएससी है, वो केवल पे कर रहा है कैंटीन वाले को और अपने एम्प्लॉय से वो पैसा रिकवर कर रहा है। तो ये प्योर एजेंट वाली चीज है और इसमें कोई रिकवरी, कोई जीएसटी या सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। टेलीफोन एक्सपेंस की रिकवरी अगर हो रही है तो वो कभी भी उसका बिजनेस नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम प्रीमियम की रिकवरी पे भी सिमिलर स्टैंड था। सो कलकत्ता हाईकोर्ट का ट्रान 1 के क्रेडिट का एक जजमेंट है जहां पे 3B में एसएससी ने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था अपना क्रेडिट को। तो उन्होंने बोला कि जो प्री जीएसटी का आईटीसी था वो वेस्टेड राइट था। ट्रान 1 के कारण आपके कुछ सिस्टम ग्लिचेस थे, प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, वो वेस्टेड राइट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो वो मुझे कैरी फॉरवर्ड मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशनल क्रेडिट मेरा वेस्टेड राइट था, 16(2) से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अगर मैंने 3B में भी कैरी फॉरवर्ड किया था तो जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, ब्रांड इक्विटी का जजमेंट है, वो सब वैलिड है। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट के समय वो आपकी क्रेडिट को रिवर्स करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप इस जजमेंट्स का recourse ले सकते हो। So with this I would like to conclude my deliberation, but we are open to queries. It was a fantastic, amazing session, Bhavesh ji. Very down to earth and very realistic. The forum is open for the question and answers. Participants can directly unmute themselves and ask the question. So what will be the consequence if monthly 2B is not matched although yearly 2B is matched? Sir, in case आपका मंथली कोई आईटीसी नहीं दिख रहा है, दो केस लेते हैं साथ में। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना 2B को कंसिडर, मैंने अपने इनवॉइसेस सामने वाले वेंडर के बुक कर लिए, मैंने वो क्रेडिट 3B में भी ले लिया, बट वो 2B में मेरा जाके बाद में आता है, तो आपको डिपार्टमेंट इंटरेस्ट के कॉन्सिक्वेंस कर सकता है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है, जो मेरा क्रेडिट है वो मैंने पहले ले लिया, प्रीमेच्योर अवेलमेंट कर दिया, बाद में जाके 2B में आया। रिवर्स केस जहां पे 2B में पहले आ गया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बाद में आ रहा है, इन दैट केस आपके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, आप रिको मेंटेन रखिए, नोटिस आता भी है तो आप रिप्लाई करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट प्लीज। Or if anyone have any other suggestions also or any other points to be covered, Pritam bhai and all Abhay bhai, अगर कुछ भी ऐसे लगता है तो we can discuss in this. Members can unmute themselves and ask the queries directly. Yes, I feel notices की queries भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा तो या तो दो चीजें हैं कि सेशन किसी को ही नहीं समझ में आया या तो बहुत ज्यादा समझ में आ गया, तो दोनों पॉसिबिलिटी है।
आनंद मदान जी, हितेश आई थिंक टू बी वाली चीजों पे और प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे मेंबर्स, वी कैन डिस्कस ऑन केस बेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिगार्डिंग द चेंज इन रेट, सर जो रेट चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, आई एम अगेन रीआइटरेटिंग, जहां पे भी रोड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ब्रिज वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहां पे उन्होंने रेट चेंजेस नहीं लाए हैं। वो 12% में गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी को बेनिफिट कंटिन्यू हो रहा है। बाकी जहां जहां पे भी है, कैनाल, डैम, ये सारी चीजों में सब जगह पे उन्होंने रेट को 12 से हटा के 18 कर दिया है। ज्यादा इसमें मैं और कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले आपको ये एग्जामिन करना है कि गवर्नमेंट एंटिटी है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट खुद बन रहा है। उसके बाद ही अपन उस पर आगे कुछ कमेंट कर सकते हैं। सर इन केसेस में सब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है उसके रेट चेंजेस के ऊपर कुछ हाईलाइट करेंगे? सर सेम प्रोविजन जैसा सब कॉन्ट्रैक्ट का केस, जैसा मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ है वैसा सब कॉन्ट्रैक्ट है। सब कॉन्ट्रैक्ट में भी सिमिलर चेंजेस करे गए। यानी रोड के जो सब कॉन्ट्रैक्ट है वो 12 में ही रह गया, ऐसा कहना है आपका? सर आउटराइटली कमेंट मैं नहीं करूंगा, बट आप उसको जरूर एग्जामिन करिए। प्राइमा फेसी यस, वो 12 में ही रह गए रोड के कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर प्रोविजन रिलेटेड चेंजेस इन एज फार एज द प्रोविजन रिलेटेड टू ई-वे बिल आर कंसर्न? Any changes are there from 1st January as far as e-way bill is concerned? Sir, other than the provision what we have touched, there are no other changes in e-way bill. Another question, we are getting notices for GST audit. Further show cause notices issued for the same period. How to proceed in all this? What will be the impact of finding of GST audit? Sir, देखिए दो चीजें होती हैं। GST ऑडिट में अभी डिपार्टमेंट आना चालू करेगा। ऑडिट में दो केसेस होंगे, उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी दे वुड बी सेटिस्फाइड और दे वुड बी नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो नॉट सेटिस्फाइड है तो आपको वो शो कॉज इशू करेंगे, जिसको आपको रिप्लाई के साथ साथ डिफेंड करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तो इट इज वेल एंड गुड। फॉर द टाइम बीइंग सर, ऑडिट की प्रिपरेशन के लिए आप अपने क्लाइंट का एक इन डेप्थ जीएसटी रिव्यू कर सकते हैं। और जितने भी जो भी, जैसे मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, नॉट टू बी डिस्कस्ड इन डिपार्टमेंट के सामने वाली बात, जैसे 3B है तो 3B में अभी तक मेरी कंसोलिडेटेड डिटेल्स जाती है, मेरी इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाती है। तो काफी सारे जगह पे ऐसा हुआ है कि मैंने बाद का क्रेडिट ले लिया जो एडजस्ट हो सकता है। मेरे क्रेडिट नोट्स हैं जो मैंने 3B में एडजस्ट किए। अपने को अपनी वर्किंग्स को वेल मेंटेन्ड फॉर्म में रखना है, 99C के साथ परफेक्टली रिकनसाइल्ड करना है। दैट इज व्हाट वी कैन डू फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट। बाकी वो आएंगे, वो जो क्वेरी निकालेंगे, दैट वी हैव टू टेक केयर एज एंड व्हेन, जब वो आएंगे तब। सर ITC इन 3B वुड बी एडिटेबल। मेरे पास एक क्वेश्चन है डायरेक्ट, इज द ITC इन 3B एडिटेबल फ्रॉम जनवरी 22? सर 3B का जो ITC है वो हमेशा एडिटेबल रहेगा, कभी भी वो उसको फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग डिफरेंस वाले केसेस है वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। बट यस, वो रेड ब्लू कर सकते हैं सर, और जहां पे भी रीजंस मेरा जेन्युइन है, मुझे वो रेड ब्लू से नहीं डरना चाहिए। सर एक क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, दैट इज अबाउट 5% डिसअलाउंस ऑफ क्रेडिट एज रिगार्ड्स द टेलीफोन बिल्स। टेलीफोन बिल्स के लिए बोला जाता है कि नहीं, आप नॉन बिजनेस टेलीफोन बिल्स। सर नॉर्मली वो अजम्पशन लेते हैं जीएसटी ऑडिट में आते हैं तो, कि आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फोन का क्रेडिट आपने लिया है, ये क्रेडिट आपने लिया है, तो आप 5% नॉर्मल रिवर्सल कर दो। बट व्हेन प्रूव्ड कि फोन आपका एक्सक्लूसिव बिजनेस के लिए, तो आपसे 5% रिवर्सल मैंडेटरी नहीं मांग सकते सर। सो लॉ इज वेरी क्लियर कि वो 5% नॉन बिजनेस का आपको रिवर्सल तब करना है जब आपका कुछ ऐसा आईटीसी हो जो नॉन बिजनेस का आपने लिया हो। अगर आप दो फोन मेंटेन करते हैं, एक पर्सनल और एक वो, तो सर्टेनली आपसे वो नहीं मांग सकते। बट प्रैक्टिकली सर एक ही फोन होता है, उसमें पर्सनल कॉल भी आते हैं। सो गेटिंग नोटिसेस फॉर मिसमैच बिटवीन 2A and 3B getting notices for mismatch in 2A and 3B department asking to go for appeal though it is for 17-18। सर पहली बात, जो नोटिस आते हैं, मैं नोटिस के अगेंस्ट में कभी भी अपील नहीं कर सकता। अपील हमेशा एक ऑर्डर के अगेंस्ट में होती है। तो अगर वो नोटिस आपको दे रहे हैं तो नोटिस के बेसिस पे वो आपको रिकवर भी नहीं कर सकते पैसा आपसे। नोटिस का तो केवल आप रिप्लाई दो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नागपुर मेंबर्स को बताना चाहूंगा,
जितना भी ASMT 10 आता है हम उसका रिप्लाई देते हैं ASMT 11 में। ध्यान दीजिएगा, ASMT 10 के बाद जो ASMT 11 में रिप्लाई जाता है उसका ASMT 12 में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना जरूरी है डिपार्टमेंट से, क्योंकि ASMT 12 में अगर वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो वो प्रोसीडिंग कभी भी क्लोज नहीं होती है। और बाकी के जो हथकंडे हैं जो मैंने प्रोविजनल अटैचमेंट ये वो बताया, इनके लिए वो हमेशा एक तलवार ओपन रहती है कि कभी भी आपकी बोल सकते हैं कि ये प्रोसीडिंग आपकी चल रही है या पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग है। तो आप बिल्कुल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना ना भूलिए। बीइंग अ सीए इट इज आवर ड्यूटी कि क्लाइंट को हम इस चीज के लिए एजुकेट करें। प्रैक्टिकली सर मैंने देखा है कि हरियाणा में डिपार्टमेंट देना शुरू करा है, छत्तीसगढ़ में एक भी जगह पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं आ रही, महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह में सर पोजीशन है कि वो दे रहे हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जहां जहां डिपार्टमेंट को बताया जा रहा है उनके पोर्टल में वो फैसिलिटी है। एनी अदर क्वेरी सर? Yes, can you please, hello? सर जीएसटी ऑडिट की फाइंडिंग कभी भी ऑर्डर नहीं होती है। ऑर्डर हमेशा ऑर्डर इज वन विच इम्पोजेस लाइबिलिटी ऑन यू, और ऑर्डर हमेशा एज पर सेक्शन 1067 रहेगा एज पर लॉ। ऑडिट की फाइंडिंग शो कॉज नोटिस भी नहीं है, वो आपका ऑर्डर तो दूर की बात है। ऑडिट फाइंडिंग्स का हमको मेयर एक रिप्लाई देना होता है, दैट इज नॉट शो कॉज नोटिस ऑल्सो सर। तो वो ऑडिट फाइंडिंग्स, मेयर ऑडिट फाइंडिंग्स देके आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकते। Right. Member can unmute themselves and ask the query. Nikunj Modi. So what if our supplier has not filed GSTR1 in time but has filed 3B in time? Can we claim ITC in that respect? So दीपक सर मैं आपका ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आंसर करूंगा कि अगर आपका एक सप्लायर है, उसने आपका पर्टिकुलर इनवॉइस को GSTR1 में डालना भूल गया पर उसने 3B में आपके इनवॉइस को टैक्स पे कर दिया। अब जब तक वो 2B में नहीं आता तब तक आप उस क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 22 जो लॉ आ गया है उसमें। तो आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, वो नेक्स्ट 1 में डालेंगे, नेक्स्ट 2B में आपको दिखेगा, तब वो आप क्रेडिट ले पाएंगे। और अगर आपका ऐसा कुछ पास्ट का केस है जहां पे सप्लायर ने 1 में नहीं डाला लेकिन 3B में टैक्स पे किया और अब 1 में डाल भी नहीं सकता, टाइम लिमिट चली गई, तो सर आप बेटर है अभी इस मंथ में लेके उसको रिवर्स कर दो, बाद में जब वो डालेगा किसी मंथ में उस इनवॉइस को तब आप लेना, या 5% लिमिट में सेट हो जाता है तो इट इज बेटर। Hello. जी निकुंज सर। Can you please repeat on notice period recovery? सर नोटिस पीरियड रिकवरी को मैंने बहुत शॉर्ट में खत्म कर दिया था। बेसिकली नोटिस पीरियड रिकवरी क्या होता है, मेरे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अगर समय से पहले मुझे 6 महीने का नोटिस देने से पहले या 3 महीने का नोटिस देने से पहले वो इमीडिएट चले जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनकी लास्ट मंथ की सैलरी का 50% या कंप्लीट लास्ट मंथ सैलरी में उनसे रिकवर कर लेता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट नोटिस पीरियड रिकवरी। अब पॉइंट ये आ जाता था कि जो शेड्यूल 2 में एंट्री है वो बोलती थी कि अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट इज अ सप्लाई। सो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय जा रहा है मुझे जल्दी छोड़ के, वो जा रहा है तो मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूँ, आई एम टॉलरेटिंग हिज एक्ट। और क्योंकि मैं उसको टॉलरेट कर रहा हूँ और मेरे को उस टॉलरेशन के पैसे मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी या 50% सैलरी, तो ये एक सप्लाई है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है और सप्लाई टॉलरेट एन एक्ट मेरी सप्लाई भी हो गई। तो सर इसमें क्या हुआ, एक मेजर अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। उन्होंने बोला कि मेयरली बिकॉज कोई चीज शेड्यूल 2 में आ जाए वो सप्लाई नहीं बनेगी। एक बेसिक इंग्रेडिएंट सप्लाई का होना जरूरी है कोई भी चीज को टैक्स लगाने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए। उसके बाद आप शेड्यूल 2 में जाके मेयरली चेक करोगे कि क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। उससे पहले डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, शेड्यूल 2 की खाली ये एंट्री को पढ़ के आउटराइटली बिना ये एग्जामिन करे कि ये सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो बोल रहा था नोटिस पीरियड पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सर ये अमेंडमेंट आने के बाद और जो कोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है वो ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सप्लाई का वो कुछ ऐसा होता है कि आपको अग्री करना चाहिए टॉलरेशन के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ आप कभी भी अग्री नहीं करते हो कि तू छोड़ के जा, आप उसके साथ ये अग्री करते हो कि भाई तू रहे, बाई चांस तू जाता है तो मैं तेरे से रिकवरी करूंगा। सिमिलर वे में लिक्विडेटेड डैमेजेस, आप किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि तू मुझे एक्स अमाउंट ऑफ टीएमटी सप्लाई करना, तो सर आप उससे सप्लाई लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बाई एनी चांस तू टाइम पे नहीं दे पाया और उसके कारण मेरा घर नहीं बना या मेरी ऑफिस नहीं बनी तो मैं तेरे से रिकवरी करूंगा।
सो ये रिकवरी जो क्लॉज है, इट इज टू इनेबल द मेन ट्रांजेक्शन एंड नॉट इन ट्रांजेक्शन इन इटसेल्फ। वेयर एज अगर मैं किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू नॉन कम्पीट फीस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नॉन कम्पीट फीस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर, वो मेरा बेस्ट एग्जांपल है अग्रीइंग टू टॉलरेट का। क्योंकि मेरा लाइक स्विगी जोमेटो है, अगर उन्होंने लेटेस्ट से इस पूरे कॉन्सेप्ट का कॉपीराइट करवा लिया होता तो कोई और आता, या एप्पल अगर फोटो जूम करने का ऑप्शन लेके आया था तो उसने मोटे पैसे कमाए बाकी सारे एंड्रॉइड कंपनीज से, उसने बोला कि मैं नॉन कम्पीट फीस के बेसिस पे लूंगा। दैट इज समथिंग विच इज अग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट। अगर कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कभी भी सप्लाई नहीं बन सकते। दिस इज कोर्ट्स व्यू। उसके बाद नोटिस पीरियड रिकवरी की मैं फर्दर अगर बात करूं तो ये मेरी सैलरी का पार्ट होता है सर, और क्योंकि सैलरी इज आउट ऑफ शेड्यूल 3, उसको अननेसेसरी जीएसटी में लाने की कोशिश कोर्ट ने बोला कि ये गलत है। सो नोटिस पीरियड रिकवरी का मोर और लेस कोर्ट की यही अंडरस्टैंडिंग रही है। can we retract our DRC3 if we have reversed our ITC in 3B as well as DRC3? Can we retract our DRC3 if we have reversed our ITC in our 3B as well as through DRC3? सर मैं क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ दीपक जी, इसको आप बेटर क्लैरिफाई करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। HSN कोड जरूरी है और लिमिट क्या है HSN की, और नहीं डालने तो क्या होगा? तो सर जीएसटी में उन्होंने लास्ट ईयर से अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट HSN, 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट HSN मैंडेटरी किया हुआ है। और अगर आप नहीं डालते हो कोई इनवॉइस में तो आपके साथ क्या होगा? तो छोड़िए सर क्या नहीं हो सकता ये पूछिए, क्योंकि जो आपकी इनवॉइस है वो वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगी, और वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगी तो वैलिड इनवॉइस ना होने के कारण रिसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, रस्ते में मेरी गाड़ी पकड़ा सकती है, और रस्ते में गाड़ी पकड़ाने के बाद वो 100% टैक्स पेनल्टी, सॉरी 200% पेनल्टी लगा सकते हो, और 100% कॉन्फिस्केशन भी लगा सकते हैं साथ में। तो HSN सर जरूर डालिए और करेक्ट डालिए। Avesh bhai, is there any repercussions for the person who's taking the credit on the basis of that invoice which is not having the HSN code? सर बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट कुड ओनली बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड इनवॉइस, और वैलिड इनवॉइस इज व्हाट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31, और सेक्शन 31 की जो इनवॉइस है उसमें HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट में चैलेंज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो आउटराइटली मेरा पूरा ITC वो हो जाएगा, मैं फाइट करूंगा तो मैं जीतूंगा, पर प्राइमा फेसी चैलेंज आ जाएगा। लेकिन 2B में दिखेगा, वो 2B में हाँ, दिखेगा, 2B में रिफ्लेक्ट हो। मैं ले लूंगा यस। तो सर जो जीएसटी में कंडीशंस है ITC की क्यूमुलेटिव है, एक भी नहीं सेटिस्फाई हुई तो मेरा क्रेडिट डिफंग हो जाता है। कंडीशंस तो ये भी बोलता है कि हाँ, अगर आपने इनवॉइस अलग से शो किया, एवरीथिंग फाइन है, तो 2B की कंडीशंस भी नहीं थी पहले, जो भी 17, 18, 18 इसकी नोटिस अभी जो दे रहे हैं। बिल्कुल। They are giving so many notices कि नहीं, आपके इसमें नहीं दिख रहा है तो you are required to pay out. सर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पॉइंट छेड़ा है, सेक्शन 37, सेक्शन 38 और सेक्शन 39, जब मैं इन सबको ज्वाइंटली पढ़ता हूँ सर, तो एक चीज और निकल के आती है कि जहां पे मेरे सप्लायर ने अपनी इनवॉइसेस नहीं डाली, तो वहां पे मैं एज अ रिसिपिएंट प्रोविजनल अपनी ITC को डाल सकता हूँ, जो कि सप्लायर को कम्युनिकेट करा जाएगा और मैंडेटरी उसको बोला जाएगा कि आपने इसको GSTR 1 में नहीं डाला है, डालो। ये लॉ में एग्जिस्ट करता है सर, पर ये प्रोविजनल ITC क्लेम करने का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने प्योर इग्नोर कर रहे हैं सर। तो लॉ का कोई प्रोविजन है, कोई बात लॉ में लिखी हुई है तो उसको मीनिंग देना बहुत जरूरी है, पर ये इस चीज को बिल्कुल भी आज एज अ रिसिपिएंट कोई चीज 2B में नहीं आ रही तो मैं उसको क्लेम ही नहीं कर सकता सर। सो 1 करोड़ के नीचे भी HSN डालना जरूरी है सर, 4 डिजिट। लॉकर भेजा मुग्धा ने अमेज़न से। काय का लॉकर? अलमारी में रखने का। दीपक सर का एक आया है, और एक्चुअल इशू इज वी हैव रिवर्स्ड अवर ITC फ्रॉम बोथ, दैट इज अवर 3B as well as DRC3. My question is how to cancel DRC3? Is it possible or should we get the refund for this issue? सर दीपक सर, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि DRC3 का आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपको वो उतनी आसानी से रिफंड देंगे, लेकिन देयर आर मेनी जजमेंट जहां बोलते हैं कि अगर आपने ITC रिवर्स कर दिया है तो आप उसको क्लेम बैक कर सकते हो। तो सर आप उसको क्लेम बैक कर सकते हो, फिर कोई इशू आता है तो उसको फाइट करना इजी रहेगा रिफंड के प्रोविजन में जाने से। सो यू कैन वैलिडली क्लेम बैक इफ यू कैन प्रूव यू हैव डबली रिवर्स द ITC.
सर आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी अगर कोई क्वेश्चन है मतलब जीएसटी के दायरे में ही तो भी वो अपन ले सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि अमेंडमेंट से ही लेना है. सो Right. So in the time we will take up 2 or 3 questions. यस. If there are any. Sir, there is a concept, one question. There is a concept of fair market value of the services or the product. So if a chartered accountancy firm is doing any audit for any charitable organization without any charge, whether GST could be levied on notional basis in such cases also? So sir, there is a clear cut judgment in the matter. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मैं देखूं तो हिंदुस्तान कोको कोला और देयर इज वन मोर जजमेंट, 2-3 जजमेंट हैं जो बोलते हैं कि अगर मैं अपने गुड्स को या अपनी सर्विसेज को अंडर वैल्यू करके बेचता हूं, जब तक उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है लॉ में, तो उसका अंडर वैल्यूएशन को वो क्वेश्चन नहीं कर सकते. एक दूसरा इसमें क्या आता है, अगर कोई मेरे रिलेटेड पार्टी या मेरे एम्प्लॉय को मैं कुछ सेल कर दिया या सीए फर्म ने अपने कलीग सीए जो कि मेरा रिलेटेड पार्टी है एज पर द जीएसटी फैमिली में आ रहा है, इन दैट केस वो वैल्यूएशन को डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं. सेक्शन 15 में रीड विथ रूल्स एक्सप्रेस प्रोविजन है, लेकिन जहां पे वो एक्सप्रेस प्रोविजन में फॉल नहीं हो रहा, दे कैन नॉट क्वेश्चन माय अंडर वैल्यूएशन. जहां पे रिलेटेड पार्टी नहीं है, मैं फ्री में भी मेरी सर्विसेज दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें एक बात और आपके ध्यान रखने की है सर कि एक प्रैक्टिकल केस आता है ट्रांजिट इंश्योरेंस का, जहां पे क्या होता है, मेरे गुड्स अगर रास्ते में डैमेज हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूं कि मेरे गुड्स को अंडर वैल्यूएशन में बेचता हूं और जो मुझे ट्रांजिट इंश्योरेंस क्लेम मिलता है उसको डिपार्टमेंट इंक्लूड करने की कोशिश करता है. तो सर जो ट्रांजिट इंश्योरेंस मुझे मिल रहा है दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम जो मुझे मिला और दैट इज आउट ऑफ जीएसटी. जो मेरा अंडर वैल्यूड गुड्स है, जो मेरा हल्का सा डैमेज गुड्स है, उसको जो मैं अंडर वैल्यू में बेच रहा हूँ वहां पे कोई जीएसटी इंपैक्ट नहीं होगा. सो आउटवर्ड साइड में आईटीसी रिवर्सल में दैट इज सेपरेट क्वेश्चन. सो नवजोत सर का एक क्वेश्चन है, जीएसटीआर1 की पेनाल्टी क्या है? सर कुछ 25, 50, 100 रुपए थी, कुछ लेट फी लगती है वही है, अदरवाइज और कोई पेनाल्टी नहीं है. संदीप जी का एक क्वेश्चन है, इनवॉइसेस आर प्रीपेड विथ एचएसएन कोड बट वन सबमिटेड विदाउट एचएसएन कोड द पीरियड सितंबर. सर वैसा कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे आपके केस में. बहुत ही क्लरिकल सा इशू है सर, जहां पे मेन इनवॉइस में एचएसएन कोड आ रहा है, वन में नहीं गई, ठीक है. उसमें आई डोंट फील कि कोई मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. सो एक और क्वेश्चन है, वी हैव अपलोडेड अ ट्रांजैक्शन इन जीएसटीआर1 इन 1920 एज B2C व्हेन इट वाज एक्चुअली अ B2B ट्रांजैक्शन, कैन वी अमेंड इट नाउ? तो सर 1920 का आप अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते, पर ये दिसंबर के रिटर्न में आप एक डिक्लेरेशन ले सकते हो और 5% की लिमिट में सेट करके आप आगे बढ़ सकते हो उस पर्टिकुलर केस को. अदरवाइज देन आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा. प्रखर सर का एक क्वेश्चन है, जीएसटी सर्च होने के बाद ऑर्डर आने के पहले DRC3 से पेमेंट करवा सकते हैं क्या? डिफरेंसेस फाइंड आउट करके. सर 100% कर सकते हैं. सेक्शन 73 लॉ मुझे बोलता है कि नोटिस इश्यू करने से पहले अगर आप कोई भी वॉलंटरी पेमेंट कर देते हो तो उसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. तो सर आप बिल्कुल करवा सकते हो. इनफैक्ट हम तो 3B में भी पेमेंट करवा दें तो भी कोई इशू नहीं है. पेमेंट अगर हो गया वॉलंटरी तो मुझे वो लीगली कंपेल नहीं कर सकते कुछ. 3B1 का मिसमैच का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा? सर वो तो हाईली केस टू केस बेसिस पे वाली चीजें हैं. हालांकि 26, 17 एक सर्कुलर है जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, उसमें सारे सिनेरियोस को एक्सप्लेन किया हुआ है. 26, 17 कुछ नवंबर 2017 में आया था वो सर्कुलर. इफ पेमेंट इज डन बट नॉट a person, कैन पेनल्टी बी चार्ज्ड? पेमेंट हो गया पर a person नहीं हुआ. ब्रजेश सर ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ. उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और वो बोलना चाहते हैं कि भैया तुम तो समझ लो कि ये तो पेनल्टी का ही पैसा था, ये तो टैक्स का ही पैसा था. पेमेंट इज डन, DRC03 इज नॉट फाइल्ड. ओके. तो सर बेसिकली मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कैश लेजर में पैसा जमा कर दिया लेकिन डीआरसी की फाइलिंग नहीं करी. तो सर देयर इज अ जजमेंट जहां पे वो बोला गया है कि जब तक अपन कोई रिटर्न को फाइल नहीं करते द अमाउंट इज समवेयर इन द क्लाउड. और जो कैश लेजर है आपको याद होगा एक अमेंडमेंट आया था जिसमें वो बोले कि अगर सी का पैसा है तो आई में, आई का पैसा है तो सी में, मेयरली आप PMT04 से ट्रांसफर कर सकते हो. तो सर जो कैश लेजर है वो आपकी जेब है जिसमें आपके पास ये तक अधिकार है कि आप एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसा डाल रहे हो. तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पैसा है, वो पैसा है.
जब तक आप उसको सेट ऑफ नहीं करते तब तक वो सरकार को पेमेंट नहीं माना जाएगा। सो सर ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा हुआ था कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, कैश लेजर में पैसा जमा करवाते गए, उनको पता ही नहीं था कि हमको 3B फाइल करके सेट ऑफ भी करना है। तो उस केस में वो पुराने केसेस पेंडिंग है, पर आई एम रियली वरीड कि वहां पे जजमेंट नेगेटिव ही आएगा। Right. Naresh sir, can we conclude? Yeah, it was a very, very, very exhaustive and very interesting sessions. सर Thank you, मुझे नागपुर में Bhavik. मौका देने के लिए धन्यवाद, एंड इट वाज कंप्लीटली माय प्लेजर सर, आई रियली एंजॉयड अ लॉट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे जरूर मिलती रहनी चाहिए। नागपुर हमेशा से एक ड्रीम सिटी था, तो फिजिकली आना तो नहीं हो पाया सर, वो हाईवेज देखने का मेरा अभी भी बहुत मन है। सो एक नागपुर के सिकासा में देयर वाज वन पर्सन हु वाज माय फ्रेंड, तो सिकासा का एक फेस्ट हुआ था, यूथ फेस्ट हुआ था, उसमें हम लोग सब आए थे, रायपुर वाली बॉडी। सो वो पॉइंट पे मैं नागपुर विजिट किया था, एंड इट वाज वे टू अर्ली 5, 6, 7 years बैक, बट आज वापस आके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। Pleasure, Bhavishji. It's always pleasure to be with you. Whenever you are in Nagpur or whenever you have any plan as such in Nagpur, do let us know. We can plan an open session, general session wherever you are in Nagpur. It will be pleasure to 100%. have you here. At the same time, we are having our branch bulletin also where we are publishing the monthly articles on a regular basis, and the chairman sir is ensuring that on 1st of every month the bulletin is released without any Great. he has fixed the deadline and no extension for that as such. Okay. So Okay. keep contributing the articles there also. 100% sir. 100%. And we are thankful to you for your valuable time and patience for 100%. all of us. Thank you, Bhavishji. And Thank you, sir. Yeah, and Chairman sir can update for the next event, and then we can conclude it. We will update the sessions as the time comes on that. On behalf of Team Nagpur branch, we extend hearty thanks to all the dignitaries and the learned speaker who have made this session really interesting. I feel the queries are now coming to the mind of many people, and that's the reason it always happens that when the session gets ended, we feel कि नहीं थोड़ा सा और पूछना था, तो ये थोड़ी सी जो चीजें छूट जाए तो हमेशा अच्छी, क्योंकि अगले सेशन के लिए डेफिनेटली काम में आती है। So thank you so much, Bhavesh bhai, and thanks to all the dignitaries. Thanks to Naresh bhai as well. As we can conclude on that. So thank you. Thank you. Thank you.